Great. I think we are live on YouTube as well. So, hello everyone. This has been the one of the most and the highest awaited session till now, which is regarding an investment banking. So many of you also wanted to get into an investment banking. काफी लोगों का सपना होता है कि IB फर्म में जाए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाए, पता करे what is investment banking all about. But many of you don't get an opportunity, to be honest, guys, right? कि होता क्या है investment banking? But it sounds very fancy, to be honest. Even it sounds fancy to me. If someone asks me what is investment banking, so although I know it, but if someone asks to some of the CA student or some of the qualified CA student or some of the freshie, so definitely he or she is going to be saying, यार नाम तो अच्छा है, पैसा अच्छा मिलता होगा, and देखते हैं, जाके ट्राई करते हैं. It sounds very cool. So to solve all this problem, all your doubts, right? Whatever doubts you have regarding an investment banking, how does investment banking works, and how much investment banking earns, and every sort of doubts, we are going to be clearing it today with this today's session, guys. So I just want you to keep your doubts posted, right? What you can do is you can definitely use the chat box to keep your doubts posted. Yeah, so sorry, I think my internet was unstable for 30 seconds. No issues. Yes. So we are going to be having a lot of interactive session around. What you can do is whatever doubts you have, you keep us posted, right? You can use a chat box where you can post your doubts. Although we have a few preset of questions which we are going to be covering it first, and once that is done, we'll open the forum for you guys to have a session around and discussion around where you can ask our expert Tushar, right? So Tushar has been working in IB firm for almost more than 2 years now. So is definitely going to be helping you out with all the problems. So before I start into this session, right, let me introduce Tushar, our guest for the today. So Tushar is an investment banker and a rank holder in CA exams. He has worked with the investment banking firm like including JP Morgan and Deutsche Bank. He is currently associated with a newly formed investment banking firm called as a Unaprime, and which is an investment advisors. So Unaprime was started by the founders of Indian private equity fund and like Everstone and Asian Capital. So he has worked across the sectors like consumer, internet, fintech, renewable energy, and SME lending. So he is also an crypto expert as a crypto enthusiast. So definitely we can have a discussion around the crypto as well if the time permits. And he is also a good blogger. So first of all, I would like to thank and welcome Tushar for joining us for today's session and finding a time out for the session. So round of applause and thanks to Tushar for joining us for today's session. Thanks for inviting me, Shivam. Thank you. Great. So I'll start with a very basic and the obvious question which a student has. यार इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है क्या? व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? जस्ट क्लियर इट आउट यार. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग? विल स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन. Actually, काफी लोग मुझसे मतलब a lot of people want to get into investment banking just because the word is so sexy, and I think there is a lot of ambiguity in terms of actually what does it mean. So I'll just tell you very simply what does investment banking means. So everybody's familiar with banks, right? Banks क्या करते हैं? Banks accepts deposits from one side and then lends money to the other side. So banks are a facilitator. Banks act as a facilitator in between, and they help in transfer of money from the depositor to the borrower. ऐसे एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है, बट इन्वेस्टमेंट बैंक में क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, सो इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प्स इन फैसिलिटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो कोई इन्वेस्टर है जिसके पास बहुत सारा पैसा है, कॉर्पस है, से 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, या कोई कंपनी है जिसके पास बहुत बड़ा कॉर्पस है, who wants to invest that money. So the investment banker will facilitate investment of that money into a startup, say Zomato. जोमेटो में 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करना था किसी को, से राकेश झुनझुनवाला को. तो राकेश झुनझुनवाला डायरेक्ट नहीं कर सकता जोमेटो में इन्वेस्ट, क्योंकि उसको पता नहीं है अच्छा कैसे अप्रोच करूं जोमेटो को, और जोमेटो को भी पता नहीं है कि राकेश झुनझुनवाला को इंटरेस्ट है कि नहीं. और इस वजह से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बीच में होता है जो ये दोनों पार्टीज को मिलाता है, दोनों पार्टीज को एक अग्रीमेंट पे लाता है कि अच्छा चलो यार जोमेटो का वैल्यूएशन अपन 10,000 करोड़ कर देते हैं या 1 लाख करोड़ कर देते हैं, जो भी है. एंड ये सारे रोल इन्वेस्टमेंट बैंकर प्ले करता है. सो इन्वेस्टमेंट बैंकर इज बेसिकली अ फैसिलिटेटर हु हेल्प्स in facilitating investment by an investor to a startup company or anyone else.
Right, right. Great. So, as you mentioned, it has a derive from the banking term and the stuff, right? So, can you also brief us about that? How many divisions that investment banking has, as in, what are the divisions under which an investment banking works? So there are divisions are typically in large investment banks like JP Morgan, Deutsche Bank, but there are multiple small outfits also which are like 6-10 people. So they typically don't have divisions. But I'll tell you briefly what are those divisions in the large investment bank. So there are three broad divisions. First is ECM, Equity Capital Markets. I'll explain you by giving you an example. And the second one is DCM, which is Debt Capital Markets. Third one is Mergers and Acquisitions M&A. तो क्या होता है जैसे जोमेटो को पैसे रेस करना है तो अब मैं बताता हूँ किस किस डिविजन पे वो किस केस में जाएगी। तो अगर मान लो जोमेटो को आईपीओ में पैसे रेस करना है तो वो इक्विटी कैपिटल मार्केट डिवीजन के पास जाएगा, जो आईपीओ डिवीजन भी बोल सकते हो आप जिसको। सो वो ईसीएम डिवीजन के पास जाएगा एंड दैट ईसीएम डिवीजन विल हेल्प जोमेटो टू रेस मनी फ्रॉम द मार्केट्स इन केस ऑफ एन आईपीओ। एक डीसीएम डिवीजन है, डेट कैपिटल मार्केट्स। अगर मान लो जोमेटो को एक बॉन्ड लाना है, डेट डेट रेस करना है, ठीक है, जिसमें वो फिक्स्ड 8% 7% इंटरेस्ट देना चाहती है, तो उस केस में Zomato will go to debt capital markets division. So that is the second division. Then the third division is mergers and acquisitions division, M&A. So अगर मान लो Zomato को, अभी जैसे Zomato ने ग्रोफर्स में इन्वेस्ट किया था, Zomato को ग्रोफर्स को अक्वायर करना है, उसमें इन्वेस्ट करना है, या मान लो रिलायंस ने ऑफर दे दिया कि Zomato को अक्वायर कर लेता है, तो ऐसी कोई भी एक्विजिशन वाली एक्टिविटी होती है जिसमें एक कंपनी दूसरे से मर्ज हो रही है या एक कंपनी दूसरे को अक्वायर कर रही है या वो किसी को सेल कर रहा है अपना बिजनेस, तो वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिवीजन के पास जाते हैं। तो हर केसेस डिफरेंट डिविजन के पास जाते हैं। अभी क्या होता है, बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में ये बड़े बड़े केसेस जाते हैं, जोमेटो जैसे केसेस जाते हैं। अब देर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स ऑल्सो, राइट? आपने कितने सारे स्टार्टअप्स के नाम सुने होंगे, लाइक जोमेटो के अलावा स्विगी है, उसके बाद पेटीएम है। तो देर आर मल्टीपल स्टार्टअप्स, राइट, अदर देन जोमेटो हु आर नॉट लिस्टेड राइट नाउ। सो ये कहाँ पे जाते हैं? सो इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है, जो 20 से 25 लोगों की टीम होती है। जैसे एवेंडस सुना होगा आपने, O3 कैपिटल सुना होगा। मैं एक बैंक में काम करता हूँ, ऊना प्राइम। सो वी स्पेशलाइज इन फॉर दीज स्मॉलर कंपनी स्टार्टअप्स, और से थोड़ी सी और लार्ज कंपनी हो सकती है, मिड मार्केट कंपनीज, और करंटली नॉट लिस्टेड, जो प्राइवेट मार्केट्स में एग्जिस्ट करती है। अभी वो आप उसको शेयर बाय नहीं कर सकते आप कहीं पे भी जाके, क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है अभी तक। ठीक है, तो इन कंपनीज में हम जैसे इन्वेस्टमेंट बैंक हेल्प करते हैं। तो हमारे हमारे कुछ डिविजन नहीं होते हैं, हम जस्ट मतलब अगर इस कंपनी को पैसा रेस करना है तो हम है, अगर इस कंपनी को अपना बिजनेस सेल करना है तो हम है, अगर इस कंपनी को किसी बिजनेस को अक्वायर करना है तो हम है। तो वैसे स्पेशलाइजेशन रहता है। अब इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंक्स में सेक्टर वाइज भी स्पेशलाइजेशन रहता है। किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को हेल्थ केयर अच्छे से आता है, तो कोई भी हॉस्पिटल वगैरह बेचना है तो उस इन्वेस्टमेंट बैंक के पास जाते हैं। किसी इन्वेस्टमेंट बैंक को टेक्नोलॉजी वाले बिजनेसेस अच्छे से आते हैं, तो कोई भी जोमेटो स्विगी जैसी कंपनी उनके पास जाती है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंक एग्जिस्ट करती है। सो या दिस इज लार्जली Right. So, really good to know about the brief about an investment banking. So, I'll also cover few questions or some personal question regarding to you as well, because many of them are much more interested in how to get into that and what's the procedure of getting into that. So, definitely we are yeah. going to be covering that questions during the session. You are supposed to keep connected till end. Don't worry. And if any of you have any question, do not hesitate to post it out so that we can cover each and every questions, right? Tushar, is there any parameter which differentiate an investment banking from a commercial banking? As in, so what are the things which differentiate a commercial banking versus an investment banking? सो कमर्शियल बैंकिंग, जैसे हम जब भी नॉर्मली बैंक की बात करते हैं, सो दैट इज कवर्ड इन कमर्शियल बैंकिंग। सो बैंक यूजुअली डील विद रिटेल ऑडियंस, हम जैसी ऑडियंस के साथ डील करती है। तो हम अगर लोन लेने जा रहे हैं, डिपॉजिट लेने जा रहे हैं, तो हम एक कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। वो उस बैंक को कमर्शियल बैंक बोलते हैं, जो रिटेल ऑडियंस के पास के साथ डील करती है। इन्वेस्टमेंट बैंक, क्योंकि अभी मैंने बताया 20-25 लोगों की टीम होती है ज्यादा से ज्यादा, तो अभी 20-25 लोग ऐसे, मतलब मान लो एक एसबीआई के जैसे 20 करोड़ कस्टमर से, तो 20 करोड़ कस्टमर से तो डील कर नहीं सकते। सो इन्वेस्टमेंट बैंक डील्स विद स्पेशलाइज्ड पीपल। अगर कोई स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट है जिसको फंड रेजिंग करना है, या फिर किसी रिलायंस को किसी कंपनी को अक्वायर करना है, तो वो फिर इन्वेस्टमेंट बैंक के पास स्पेसिफिक केसेस के लिए आती है। तो हमारी जो किसी कंपनी के जो भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, वो इन्वेस्टमेंट बैंक सॉल्व करती है। और कमर्शियल बैंक की रिटेल में डिपॉजिट लेना, लोन देना, किसी को छोटे छोटे बिजनेसेस को लोन प्रोवाइड करना, सो वो कमर्शियल बैंक के ऑपरेशन आते हैं। सो दिस इज लार्जली द डिफरेंशिएशन। Commercial Okay. bank deals with retail audience, investment bank deals with corporate audience, large companies.
Okay. Great. And also there is one more confusion between the students around कि यार research analyst या equity research analyst versus an investment banking वो भी difference क्या होता है? So is there a difference between an equity research analyst versus an investment banker? Yeah. So there is a huge difference actually. So equity research analyst क्या करता है basically? So equity research analyst अगर कोई equity research firm है, जैसे 15 लोगों की equity research firm है, तो उनका काम क्या होता है? What they do is they will figure out से अच्छा 20 stocks है, ये हमने चूज कर लिए, या फिर 20 stocks ढूंढने हैं हमें जो हम क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे, तो रिसर्च करना पड़ेगी। इक्विटी रिसर्च है, क्योंकि वो रिसर्च इज द कीवर्ड देयर। तो हम वो लोग क्या करते हैं, अब जैसे उन्होंने ढूंढ लिया, चलो यार जोमेटो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जोमेटो पे दे विल स्टार्ट डूइंग रिसर्च, एंड फिर उसके बाद देखेंगे अच्छा जोमेटो का बिजनेस क्या है, जोमेटो के कॉम्पिटिटर कौन है, बाहर फॉरेन मार्केट्स में कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी है जोमेटो जैसी, तो उसने कैसा परफॉर्म किया है। तो ये सब चीजों की वो अराउंड वो रिसर्च करते हैं, फाइनेंशियल्स कैसे है, जोमेटो की सेल्स ग्रोथ क्या है, जोमेटो की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, या जो भी है। तो ये सब पैरामीटर्स पे वो लोग रिसर्च करते हैं और वो एक रिपोर्ट लिखते हैं। उसमें वो रिपोर्ट में वो एक टारगेट प्राइस देते हैं कि अच्छा चलो यार जोमेटो का वैल्यूएशन होना चाहिए 20,000 करोड़, और उससे शेयर प्राइस होती है 500 रुपए या जो भी है शेयर प्राइस। तो ऐसे वो डिराइव करते हैं, एंड फिर ये रिसर्च रिपोर्ट को वो अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बस उनका काम यहाँ तक रहता है। तो अभी इन्वेस्टमेंट बैंक मैंने जब बताया था वो कितनी इन्वॉल्व रहती है हर चीज में, तो हम पूरा ट्रांजैक्शन मैनेज करते हैं, क्लाइंट को हर एक इन्वेस्टर के पास ले जाते हैं, हम उनके लिए पिचिंग करते हैं कि यार ये इतना अच्छा बिजनेस है, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, फिर हम उनको समझाएंगे कि ये ऐसे 5 साल में ग्रो करेगा। जबकि इक्विटी रिसर्च फर्म को एक नोट बनाना है, 10 पेज की रिपोर्ट बनानी है, एंड रिपोर्ट बना के पब्लिश कर देनी है। इक्विटी रिसर्च बहुत रिसर्च ओरिएंटेड वर्क होता है, तो इन्वेस्टमेंट बैंक के काम में आपको हजारों चीजें करनी पड़ती है, मीटिंग्स कर रहे हैं, कभी हम सेल्स कॉल कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, पिचिंग कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के काम कर रहे हैं। इक्विटी रिसर्च बहुत स्पेशलाइज फील्ड है, तो किसी को भी मतलब अगर रिसर्च में इंटरेस्ट है, प्योर ज्ञान नॉलेज अक्वायर करने में इंटरेस्ट है, तो इक्विटी रिसर्च इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज वहां पे आपको दिन भर रिसर्च ही करते रहना है कि यार चलो ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी क्या कर रही है, उसके बाद दूसरी खत्म हुई तो तीसरी क्या कर रही है। सो आपका वैसे नॉलेज बेस इंक्रीज होता है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दूसरी सारी स्किल्स भी इन्वॉल्व रहती है। Right. Great. So, yeah, as of now, I'm cleared what is investment banking. Okay, I got it that it's different from the commercial bank and the research analyst is different. Till now, got it. Now coming to okay, I feels like it sounds very good. I am gonna be working with the clients where I'm gonna be helping them with the M&A deal and the other deals or the acquisition deals, right? So, you have been working with almost you have worked with the three big companies now, right? And you have given a lot of interviews as well. So many of the students also ask us, what are the questions or what are the qualities? Let's come to the qualities first, right? What are the qualities that an interviewer look into when you are getting or when you're willing to get into an investment banking? Like, do they prefer the CA candidate or not? Do they prefer a CA plus CFA combination? Do they prefer a CFA level 1 combination plus CA? Or do they prefer only CFA candidate? Or what all things, what all possible things you can just give an idea about it? So I think क्योंकि most of the people like us would be giving interview as a fresher or maybe 1-2 years of experience. The kind of interview is very different compared to what a senior person would give. So fresher के लिए they would not मतलब उनका ऐसा नहीं होता कि यार आपको सब कुछ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ट्रांजैक्शन क्या होता है, कैसे किसी कंपनी को अक्वायर करेंगे। So most of the interviewers even in other jobs other than investment banking they look for aptitude क्या है बंदे का, मतलब उसकी इच्छा रहती है क्या। अभी वो तुमसे पूछेंगे कि यार ऑडिट में काम किया है, जैसे 3 years मोस्ट ऑफ द पीपल हैव वर्कड इन 3 years इन ऑडिट, राइट। तो ऑडिट Right. में काम किया है, मान लो यू हैव वर्कड विद मैरिको जो एफएमसीजी सेक्टर में, तो क्या पता है तुमको एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। वर यू ओनली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग, जो तुम्हारा ऑडिट करना था उतना करके छोड़ दिया, कि तुमने मैरिको के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग ली, कैसे एफएमसीजी बिजनेस रन होता है तुमने वो समझा व्हाइल यू वर डूइंग। सो कहने का मतलब ये दे लाइक टू चेक योर एप्टीट्यूड, कि मतलब were you interested in digging down, were you interested in understanding the business of the company? So business model understanding is important, मतलब वो इंटरव्यूअर समझ जाता है कि इसको आता है कि नहीं बंदे को बिजनेस मॉडल, कोई भी बिजनेस देखता है तो कैसे सोचता है उस बिजनेस के बारे में, डीपली सोचता है कि नहीं। अच्छा जोमेटो फूड डिलीवरी का बिजनेस कर रहा है, तो हर ऑर्डर 300 रुपए का होता है ऑन एन एवरेज, उसमें 30% रेस्टोरेंट को देना पड़, रेस्टोरेंट से कमीशन आता है, तो 90 रुपए जोमेटो के पास आता है, उसमें डिलीवरी कॉस्ट 60 रुपए थी। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ती है जो भी आप बिजनेस आने लाइक, अब बिजनेस के बारे में ऑडिट कर रहे हो या टैक्सेशन में आप उसका डायरेक्ट टैक्स रिटर्न भर रहे हो, तो थोड़ा सा एफर्ट डाल के इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स ये इंटरव्यू में सीधे कैच होती है। क्योंकि
इंटरव्यू सीधे आपका रेज्यूमे उठाएगा, वो देखेगा आपने क्या किया है, वो पूछेगा अच्छा चलो तुमने फिनिक्स मॉल्स का टैक्स ऑडिट किया है, चलो बताओ मॉल बिजनेस कैसे रन होता है, क्या क्या कहाँ कहाँ से उनके सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू होते हैं, क्या एक्सपेंसेस होते हैं. सो द की थिंग इज टू गेट इन टू वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ इन डेप्थ. डोंट रन आफ्टर कि यार चलो मैं ये सीख लेता हूँ वो सीख लेता हूँ. जो भी कर रहे हो उसी पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. Right, right. So indirectly, you mean to say that the candidate should ensure that they know the things end to end. Say, for example, I have done an audit of uh, any of the client, right? So you should be knowing its business. You should be knowing how it's working, or and end to end the procedures, revenue model, business model, and everything around. Right, Correct. right, right. So coming to again one more important question. Many of them ask that only rankers are preferred into the IB. You being a ranker also, right? So is this the only parameter to get into IB, or even a students with a one attempt or a multiple attempts can get into an investment banking? So obviously rank होने के advantages होते हैं, but I know multiple friends of mine who are into investment banking right now who didn't got a rank. So it's not like कि rankers को मिलती है. As I mentioned कि uh, लोग aptitude देखते हैं. अगर आप एक भी किसी इंटरव्यू में अपने आप को पोजीशन कर लेते हो, विल टॉक मोर अबाउट कि मतलब कैसे इंटरव्यू तक पहुंचना है. बट अगर आप इंटरव्यू में एक जगह पोजीशन कर लेते हो कि कहीं भी अपने रेज्यूमे भेज दिया, तो यू विल बी कंसिडर्ड फॉर दैट. सो उसकी काफी सारे ट्रिक्स होते हैं यार. मतलब अगर आपने अभी तक आपके पास कुछ पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, तो सामने वाला इंटरव्यूअर है जो भी वो फर्म में काम कर रहा है, वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि यार आपको उसको इंटरव्यू तक करना चाहिए. तो आप एक पेज का मतलब व्हाट सिंपली व्हाट वन कैन डू इज कि यार चलो मैंने मैरिको पे काम किया है, जब मैं ऑडिट कर रहा था तो मैं मैरिको पे एक वन पेजर बना देता हूँ जिसमें अपनी Hmm. पूरी अंडरस्टैंडिंग बता देता हूँ मैरिको के बिजनेस की. और किसी को भी मैं लिंक्डइन पे अप्रोच कर रहा हूँ या ईमेल कर रहा हूँ मैं, तो आई कैन सेंड दैट वन पेजर टू हिम. सो उसको क्विकली समझ आ जाएगा कि यार ये बंदे को कुछ आता है. मतलब दे अभी सीएस हर हर साल मतलब अराउंड 15-20 हजार सीएस निकलते हैं. उनके साइड से ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग 20 हजार लोगों को हर साल स्क्रीन कर सके Right. या आइडेंटिफाई कर सके कि 20 हजार में से कौन सा वी शुड हायर. सो दैट इज वाई उनको लगता है मतलब कभी कभी वो देख लेते हैं अच्छा चलो ये रैंकर है तो कुछ इसमें एक्स्ट्रा होगा, या किसी कोई रेफरेंस के थ्रू आया तो उसमें कुछ अच्छा होगा. उनके पास तो और कोई फिल्टर करने का तरीका नहीं है ना. सो यू हैव टू गिव देम अ वे टू फिल्टर योरसेल्फ. सो यू हैव टू प्रूव दैट. तो ऐसे मतलब अगर कोई एक ब्लॉग लिख सकता है जो भी उसको जिस भी चीज के बारे में इंटरेस्ट है, वन पेजर लिख रख सकता है. जिस भी कंपनीज के बारे में उसको इंटरेस्ट है, डोमिनोज के बारे में इंटरेस्ट है, डोमिनोज के बारे में वन पेजर लिखो एंड देन सेंड इट अक्रॉस टू दीज पीपल. सो दे वुड फाइंड कि यार ये बंदा क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको ऐसा ही बंदा चाहिए राइट कि जो बिजनेस Presentable ho, फटाफट समझ right? पाए, Understand कर पाए, हाँ. अंडरस्टैंड फटाफट कर पाए. एंड फाइनेंशियल एनालिसिस आता है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैव अ वेरी स्पेसिफिक एडवांटेज विच अदर्स पीपल डोंट. मतलब हर बिजनेस अपनी पूरी समराइज्ड वर्जन गिव्स देता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फॉर्म में, जिसमें वो बिजनेस का पूरा चिट्ठा मतलब लिखा रहता है. सो we chartered accountants know how to read those financial statements, so we have a very specific advantage over any other field. So this is the most important skill required क्योंकि आपको बिजनेस समझना है तो उसके लिए फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए. सो वी हैव एन एडवांटेज, बट उसको दो तीन चीजों से बिल्ड कर सकते हैं जिससे प्रेजेंटेबल हो और सामने वाले के लिए है इजी हो हमें आइडेंटिफाई करना. जो मैंने बताया कि वन पेजर लिखना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ ब्लॉग लिखो या तो कि हर बिजनेस के बारे में आपकी जो भी अंडरस्टैंडिंग है, दो तीन ऑडिट किए तो उसके बारे में, या किसी भी जो भी आपका फेवरेट बिजनेस है उसके बारे में वन पेजर लिखो. तो ऐसे कुछ तरीके लगाने के बाद यू कैन इजीली गेट इन टू द फील्ड. Right, right, right. So indirectly, I would say you need to showcase some of the qualities or different qualities that you have as compared to others. Because देखो CA तो सब है ना. Once everyone Yeah, qualified, everyone has this tag of CA, right? Everyone is CA. Now yeah. investment banker need to filter based on the speciality or the qualities, right? आपके पास rank है तो definitely एक edge मिलेगा. But you need to showcase the different qualities by making some one pager documents, and जो भी बना रहे हो it should be presentable. ऐसा नहीं है कि आप वर्ड Yeah, में कुछ उसको डाल दिया. It should have some good images. It should be correct. looking like कि हाँ यार बहुत बढ़िया बनाया और देखने में मजा आना चाहिए. So I'll also showcase you some of the PPT someday, right? The way people have made it, and also we have made few of the PPTs for earlier days. So I'll just showcase you whenever the time permits. Right. So moving to our next and very interesting question, right? Many of the students are again asking, is CFA necessary to get into an investment banking? So not really, because CFA भी मतलब so मुंबई के बाहर मतलब whoever is living उनको ऐसा लगता होगा कि यार CFA बहुत specifically if we do CFA we have an edge, but if you come to Mumbai I know that मतलब after my batch every single person was doing CFA in my hostel.
So matlab, it's not really a specific advantage that one person has right at this moment, but थोड़ा सा होता है कि यार मतलब people recognize कि कहीं कहीं पे entry level jobs पे क्या यार इसको थोड़ा financial analysis आता होगा, CFA level 1 level 2 कर रखा है, level 3 कर रखा है, तो yeah, it gives an advantage, but I won't say कि मतलब उससे ही सारी चीजें decide होती है. So Okay. So having a CFA will add some leverage, but that doesn't mean that you started doing CFA and the things. हाँ, Better you should have an analytical mind. आप कितना analysis कर सकते हो, कितना analytical mind है, that is going to be helpful. And also, absolutely. Tushar, one more question regarding how much you are supposed to keep yourself updated when you're doing an investment banking. So, is the updates require कि आपको daily news पढ़नी होती है या कि आपको किस level पे updates होना ज़्यादा ज़रूरी है? So actually क्या होता है कि मतलब how do people who interview in investment banks think about this? So investment bank में क्या करना रहता है? You have to pitch to new companies also. मतलब आप investment bank में क्या कर रहे हो? आपको ढूंढना है नए स्टार्टअप्स जिनके लिए इन्वेस्टमेंट बैंक को फंड रेजिंग करना चाहिए, यानी उनके लिए कंपनी को पैसे उठाना चाहिए. तो अगर मैं सोचता हूँ कि यार मैं आज स्विगी के लिए पैसे रेज करना चाह रहा हूँ, मतलब चलो अपन स्विगी को पिच करते हैं और उसके लिए पैसे रेज करते हैं. सो वी हैव टू पिच टू स्विगी. अब ये पिच करने के बाद 5-6 महीने का प्रोसेस होता है. 5-6 महीने द इन्वेस्टमेंट बैंक हैज टू पुट सम एफर्ट्स, राइट? तो उससे क्या होता है कि मतलब हमें बहुत चूजी रहना पड़ता है कि कौन सी कंपनी डिसाइड करना है, स्विगी पे जाना है कि जोमेटो पे जाना है कि पेटीएम पे जाना है. वी हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट इट. सब जो जनरल नॉलेज कहाँ काम आता है, इफ यू हैव सम जनरल नॉलेज कि कौन सी कंपनी बेटर है, नहीं यार जोमेटो बेटर है स्विगी से, तो वी शुड पिच टू जोमेटो. सो इस टाइप की इनसाइट्स आपके पास होती है अगर आपको थोड़ा सा भी जनरल नॉलेज है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कहीं पे कि यार जोमेटो का मार्केट शेयर 53% है, स्विगी का 40% है, तो जोमेटो अच्छी कंपनी है. मैं बहुत बिग लेवल पे एग्जांपल्स दे रहा हूँ, बट दिस इज व्हाट रियली व्हाई इट रियली मैटर्स टू रीड न्यूज, कि मतलब उससे यू हैव सम इनसाइट्स अबाउट द मार्केट, कि यार मतलब कैसे अगर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मार्केट में तो 22 लाख कंपनीज है एमसीए पे रजिस्टर्ड. अब सबको तो पिच नहीं करेंगे, तो यू शुड हैव सम इनसाइट कि मतलब यार किस टाइप की कंपनीज को पिच करना चाहिए, या किस टाइप के बिजनेसेस है एक पर्टिकुलर सेक्टर में, डिलीवरी में कौन कौन से बिजनेसेस है फूड डिलीवरी में. तो इसलिए जनरल नॉलेज इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है तो आप एक एग्जांपल कोट कर सकते हो जो आपने जनरल नॉलेज या इकोनॉमिक टाइम्स या लाइवमेंट में पढ़ा होगा. तो अगर वो सीमेंट सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो आप बोल सकते हो यार हाँ अल्ट्राटेक सीमेंट ने भी इस कंपनी को अक्वायर किया था, तो उसको समझ आता है हाँ यार ये बंदे ने मतलब थोड़ा सा ही नोज समथिंग अबाउट दैट बिजनेस. He has invested time to understand that business. So that is where it plays a very important role. So yeah, you should read newspapers, and Economic Times or Alignment or they are good newspapers. So you should read them regularly, at least till you get into an investment bank. After that, you can maybe focus on very specific things that you want to make your career in. But before getting selected, interview में काफी काम आता है. Right. So जो भी हम बोलते हैं कि you are supposed to get updated from the news and reading the Economic Times and all those things, definitely it's gonna be helping you out, right? And recent news, I think just today I read that Dunzo and Swiggy are thinking of partnering out. Again, you never know that you get an opportunity to work on this project as well on the Correct. So new ऐसी company. So insights yeah. you if you can present to your partners, मतलब जो firm में, so that is useful for them. इसलिए वो इंटरव्यू में चेक करते हैं कि बंदे को कुछ आता है कि नहीं, तो हमें ये बाद में दे पाएगा कि नहीं ऐसी insights. So that is why they check general knowledge. मतलब हर चीज जो पूछना रहती है, which is being asked in interviews is for a reason, कि वो बाद में काम आएगी, इसलिए they ask these things. So इसलिए जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है. जनरल नॉलेज ऐसा नहीं कि चलो चलो रोज न्यूज़पेपर पढ़ के आओ तुम्हें इंटरव्यू में ले लेंगे, कंपनी में ले लेंगे. इसका एक पर्टिकुलर यूज केस है, दैट इज व्हाई दैट इज बीइंग आस्क्ड. Yeah. Right. So you need to be presentable at the end of the day, right? Coming to the next and important question again, which a student has. So nowadays, we have seen the tools like they have been growing into the AI tools, plus also some financial modelings and all these things, right? So how do you think as all these things are important and relevant from an investment banker's perspective? तो फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी पड़ती है. सो फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है बेसिकली, सिंपल वर्ड्स में मतलब कोई भी कंपनी है उसका आज का आपके पास P&L बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट है. फाइनेंशियल मॉडलिंग यानी आप उसको 5 years एक्सटेंड कर दो, मतलब 5 years बाद उसकी सेल्स क्या होगी, सेकंड ईयर में क्या सेल होगी, थर्ड ईयर में क्या सेल होगी, तो आप एक ग्रोथ रेट लगाओगे, 20% से सेल्स ग्रो करेगी, तो ये फाइनेंशियल मॉडलिंग होती है. तो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो फ्यूचर कैसा होगा इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए, तो आप उसकी प्रोजेक्ट करके इनकम स्टेटमेंट बनाओगे, P&L बनाओगे, बैलेंस शीट बनाओगे. तो ये करना ही पड़ता है हर बिजनेस के लिए, क्योंकि आप किसी बिजनेस को सेल कर रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा अच्छा यार ये बिजनेस फ्यूचर में 5 साल बाद आज 20,000 करोड़ की सेल्स है, 5 साल बाद 1 लाख करोड़ की सेल्स होगी,
तो आपको बताना पड़ेगा, जब भी इन्वेस्टर बोलेगा हाँ चलो यार 1 लाख करोड़ की सेल्स होगी, अच्छा बिजनेस है, खरीद लेते हैं। सो इट्स इम्पोर्टेंट, बट एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ द एंट्री लेवल जॉब्स में एक्सपेक्ट नहीं करते कि आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग पूरी तरीके से आना चाहिए। आपने जो एसएफए में पढ़ते हैं, स्पेशली सीए फाइनल के सिलेबस में काफी सारा ये एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है, जिसमें सेल्स ग्रोथ कैसे फिगर आउट करते हैं कि कितनी सेल्स ग्रोथ होगी, फिर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, वैल्यूएशन कैसे करते हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। तो उसमें अगर मतलब कोई भी बंदा एक किसी भी कंपनी का एग्जांपल ले, जैसे कि अपन जोमेटो का ले लेते हैं, और फिर उसके लिए ये सब चीजें आप प्रिपेयर कर लोगे, ऐसे मेंटली इंटरनली कर लो रन, आपको कोई बड़ी वो वॉल स्ट्रीट इंस्टीट्यूट या कोई बड़ी वो ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। बट ये सब चीजें आप खुद फिगर आउट कर सकते हो। कोई सी भी एक अपना फेवरेट बिजनेस ले लो, जो अपने एसएफएम के कॉन्सेप्ट्स पढ़े आपके सीए फाइनल में, उनको यूटिलाइज करो और वो बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोजेक्ट करो। तो मतलब वंस यू डू दिस एक्सरसाइज यू विल लर्न, अच्छा हाँ इसके बाद मेरे को ये करना पड़ेगा, तो मेरे को सोचना पड़ेगा कि यार जोमेटो की सेल्स कैसी होगी, तो मेरे को अब सोचना पड़ेगा पास्ट में इसकी सेल्स कैसी थी, तो पास्ट में 30% से ग्रो हुआ, चलो फ्यूचर में 40% से ग्रो करेगा क्योंकि मार्केट बढ़ रहा है या जो भी है। सो दिस वे यू हैव टू फिगर आउट एंड यू कैन फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ इफ यू थिंक दैट दिस इज देन देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेर यू कैन लर्न। यूट्यूब पे एक अश्वत्थ दामोदरन करके एक टीचर है, वैल्यूएशन के बहुत अच्छे टीचर है। सो ही इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन इज बेसिकली फाइनेंशियल मॉडल बना लिया आपने, 5 साल प्रोजेक्ट कर लिया, फिर जो भी कैश फ्लो आ रहा है उसको पीछे खींच के वैल्यू को निकालते हैं कंपनी की, कि ये कंपनी की कितनी वैल्यू है बेस्ड ऑन उसके जो 5 साल के आगे कैसा परफॉर्म करने वाली है। तो वो पूरा बताता है कि फाइनेंशियल मॉडल कैसे बनना चाहिए। उसके पास बहुत सारे उसकी वेबसाइट पे फाइनेंशियल मॉडल के एग्जाम्पल भी होंगे, डाउनलोड कर सकते हो आप। तो वहां से सीख सकते हो, काफी सारे फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है जिससे फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख सकते हो। बट सेइंग दैट एंट्री लेवल पे मे बी इतना ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, कहीं कहीं पे मतलब कहीं कहीं पे पूछ लेते हैं कि यार फाइनेंशियल मॉडलिंग कैसे होती है ये सब, बट अदरवाइज एंट्री लेवल पे इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड। Right. So at least it's better to have a basic knowledge around कि at या least आपको थोड़ा बहुत पता हो, right? And although आप कुछ चीजों को Excel पे या कंप्यूटर पे कुछ कर पाओ instead of using it pen and paper, because now you're gonna be using a laptop day and night, right? So it is expected that you should know it. And also you can check out the course. We have one of the course on financial modeling as well. You can visit our website as well, and the people from YouTube you can check on the description as well, right? So we have one of the best course. This has been built up by the वन ऑफ द गाय फ्रॉम आई एम, राइट? तो अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, राइट? ऑल्सो वी हैव ट्राइड इट टू ब्रिंग इट एट अ बेस्ट एंड लोएस्ट नॉमिनल प्राइस, राइट? सो लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग यार, काफी सारे लोग एक्साइटेड है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, एंड lot of questions I can see, but even my questions are pending. But before I go into that, let me cover the questions of the audience first, right? 2 3 questions are there, so just let me scroll it up. Someone is saying, is it necessary to have a prior internship experience from a boutique firm, right? So what's your take on this? So many of them also prefer that or says that कि हाँ यार मुझे internship चाहिए IB firms में या कुछ तो, और do IB firms prefer the candidate with a internship experience in this domain? So internship is a good way to get entry into this field. So I'll give you a background of myself. मतलब मैं before I went into JP Morgan, so JP Morgan was my first मतलब full time investment banking job. उसके पहले I was into Hari Bhakti, which is an audit firm, but they also had this investment banking division जहाँ पे वो startups वगैरह के लिए fundraising करते थे। तो मैंने थोड़ा काम उसमें कर रखा था internship के टाइम पे। So it gave me an advantage कि मतलब when they were selecting people for JP Morgan, they knew that अच्छा इस बंदे को आता है थोड़ा सा already. So obviously एक advantage था. But saying that जो दूसरे मेरे साथ दोनों बंदे थे, we were 3 people who got selected that year. So उन दोनों को नहीं आता था, मतलब they were new to that field completely. So internships important होती है, मतलब अगर आपको आपको लग रहा है कि यार एंट्री नहीं मिल पा रही है फील्ड में, तो डेफिनेटली मतलब अगर आप ऑलरेडी सीए हो तो पे कट लेके इंटर्नशिप्स लेना इज अ वेरी गुड वे टू एंटर इनटू दिस फील्ड। मतलब एक साल का पे कट होता है, मतलब 6 मंथ्स का पीरियड होता है वेर यू आर वर्किंग एट अ लोअर पे, बट उसके बाद देर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट ग्रोथ, बिकॉज आपको एक बार वो स्किल्स एक्वायर कर ली ना आपने कि इन्वेस्टमेंट बैंक में कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे रोल प्ले करते हैं, मतलब व्हाट ऑल यू हैव टू डू, सेल्स रिसर्च वगैरह, फाइनेंशियल एनालिसिस, देन इट बिकम्स वेरी यूजफुल व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर नेक्स्ट जॉब। उसके बाद मतलब यू वोंट फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट जॉब एनीवेयर once you go through that internship period. तो important होती है, मतलब if you are not getting a full-time role, it's better to take an internship if you are really keen to pursue this.
Right. Great. So also, yeah, I should not be asking this question, but I just asking because a lot of people just wanted to know what is the scene of a work-life balance in the IB firms. या डिपेंड करता है मतलब सो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ पीपल दैट यू आर वर्किंग विद मतलब हाउ व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस दे हैव सीनियर टीम की क्या एक्सपेक्टेशंस है मतलब उनको ऐसा चाहिए कि यार 10 प्रोजेक्ट पे काम करो साथ साथ में तो ऑब्वियसली हाई एक्सपेक्टेशंस है तो थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ा होगा बट हाँ मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा रहता है कि यू आर वर्किंग मोर देन अ नॉर्मल जॉब सो यू विल बी वर्किंग फॉर 10-12 आवर्स नॉर्मली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में मतलब इट्स नॉट अ universal rule, but most of the time you are working that much. But yeah, actually, इसका काफी मतलब even if you are working say 12 hours a day for 6 days a week, मतलब it pays off after 2-3 years. It pays off very well in terms of a better job, which is more stable job or maybe a better pay or whatever. It pays off after 2-3 years. So it's not like यार मतलब नहीं करना चाहिए या वर्क लाइफ बैलेंस की तरफ फोकस करना चाहिए मतलब if somebody is really keen to pursue this and 1-2 years वो effort put कर सकता है nothing like that. एंड इफ यू Right. रियली एंजॉय दैट मतलब वो ऐसा लगता नहीं है कि इट्स 12 आवर्स और 13 आवर्स और मतलब काफी मतलब मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल रियली एंजॉय इट मतलब रोज बिजनेस समझना 12 घंटे 13 घंटे क्या फर्क पड़ता है मतलब इफ यू आर एंजॉइंग इट वो यू फॉरगेट कि कितने आवर्स जा रहे हैं सो या द की इज टू फाइंड वेयर यू एंजॉय Right. I generally say about keys to find your Lela. Lela is in short where you want to get next in your life or where you want to see your career in upcoming days. Right. या So also it has been seen that or it's also many people say that investment banking has a good pay around as compared to the normal. So how true it is and what is the differentiation in a pay between a normal guy and a investment banking? I just a broad numbers. या सो ऑब्वियसली ज्यादा पे मिलता है बिकॉज काम भी ज्यादा करवाते हैं एंड Okay. इट्स अ वेरी नीश फील्ड मतलब यूजुअली 10-20 लोग रहते हैं जहाँ पे 40 लोग की कैपेसिटी एग्जिस्ट कर सकती है तो 20 लोगों से काम कराते हैं 40 का सो दे पे हाई बट मतलब इट डिपेंड्स बूटिक इन्वेस्टमेंट बैंक स्टार्ट फ्रॉम 8 lakhs टू हायर जो अच्छी इन्वेस्टमेंट बैंक्स होती है वो 30-40 lakhs तक भी पे करती है एंड देन उसके बाद एक बोनस एलिमेंट भी होता है सो या इट डिपेंड्स बट it's more than what you would get in a similar audit setup or tax setup obviously 8 lakh 10 lakhs से start होता है then average is 15 lakhs you can say Okay. Great. So pay तो ज्यादा रहता है, but हाँ, definitely you're gonna be working hard day and night. So again, it's compensating, which I can say. So it's again more important that finding the domain where you get into. Right on 5th of September, we are launching one of the biggest surprise for each one of you, and 5th of September is our Teachers' Day. So you're planning some of the gift which we are trying to give each and every one of you on that date, which is going to be helping you to find the domain where you can get into. Right. So moving to the next question. So as and when Tushar, see, for example, you qualified as a freshly chartered accountant, and many of the students now will be qualifying it as a freshly chartered accountants, right? So how they can approach an IB firm, very important. So IB firm mostly campus में तो ज़्यादा दिखती नहीं है, to be honest, right? So how person can approach an investment banking firm, and what's the procedure did you follow to get into an IB firms? so मतलब so there are 1000 investment banks in the country so there are multiple opportunities if somebody wants to get into as I mentioned earlier internship is the easiest one to pursue after you clear your CA because उनको भी ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए ना मतलब हायर करने के पहले यार कि हाँ चलो यार 3 महीना काम करा के देख लिया एंड द पर्सन इज गुड सो दे विल हायर यू फुल टाइम सो इंटर्नशिप इज द बेस्ट वे तो अगर टॉप 20 फर्म्स में आपका नहीं हो पाता है जो मतलब आपको पता है टॉप 20 फर्म्स जेपी मॉर्गन डॉइचे बैंक एवेंडस O3 कैपिटल वट अगर उसमें नहीं हो पाता है एंड देन आपको बाकी की 980 फर्म्स में अप्लाई करना है तो उसका मतलब बहुत सारे आपको नाम नहीं पता है फर्स्ट प्रॉब्लम इज नाम नहीं पता है कौन है 980 फर्म्स सो कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये कौन सी फर्म्स है 980 जो एग्जिस्ट करती है इंडिया में जिसमें वी कैन अप्लाई सो द सिंपलेस्ट वे इज लिंक्डइन एवरीबडी हैज एक्सेस टू you can simply search for investment bank Mumbai so jitne and then go to people so all the people who work in an investment bank in Mumbai would come up then go through their profiles उनको connection request भेजो साथ ही साथ देख लो कि वो कौन सी फर्म में काम कर रहे हैं so you'll get multiple names like मतलब आपको 100 names यूं मिल जाएंगे मुंबई में so this is the way to identify name of the firm then मैंने जैसे पहले बता रहा था कि once you identify firm कौन सी है अब उसमें अपने बंदे को connection request भी भेज दी
उसने एक्सेप्ट कर ली, अगर नहीं एक्सेप्ट करी तो ईमेल आईडीज ढूंढने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इजीली मिल जाती है ईमेल आईडीज। उनकी वेबसाइट पे देख लो, 2-3 परमुटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करो, नेम डॉट लास्ट नेम एट द रेट जो भी एट द है रेट डॉट कॉम, कंपनी नेम। company.com, या फर्स्ट इनिशियल होता है फिर लास्ट सरनेम होता है @company.com। तो ऐसे 4-5 अगर वेरिएशन ट्राई करोगे तो आपको इजीली ईमेल आईडी मिल जाएगा, और ईमेल वेरीफाई करने के भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। सो आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड ईमेल आईडी, या फिर आपको लिंक्डइन में कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली उस बंदे ने जो उस कंपनी में काम करता है, जस्ट सेंड देम अ वेरी शॉर्ट मैसेज along with a one pager or something that you have done, which is important and which can show that you are capable of doing this, capable of the role. So जो भी है मतलब just send it out to him. Hi, I was thinking whether there are any openings for analyst or internship in your organization. Would love to know this, and also please see below the work that I've done earlier. ऐसा करके. So you can send it across and people will respond मतलब definitely. So but ऐसा रहता है कि मतलब if you want to find an ideal पोजीशन फॉर यू, यू हैव टू सेंड इट आउट टू मल्टीपल पीपल। लोग क्या करते हैं, 2 लोगों को भेजा, यार उसने मना कर दिया, या फिर एक जगह इंटरव्यू हो गया, खत्म। ऐसे नहीं, मतलब यू हैव टू अप्लाई टू एटलीस्ट 50 प्लेसेस, 50 प्लेसेस, क्योंकि मतलब यू जस्ट डोंट हैव टू फाइंड अ जॉब, यू हैव टू फाइंड एन आइडियल जॉब फॉर यू। मतलब लोकेशन अच्छी होना चाहिए, लोग अच्छे होने चाहिए, किस टाइप का काम है वो आपको सूट करना चाहिए। सो एवरीथिंग हैज टू सूट, सो यू हैव टू अप्लाई टू मल्टीपल प्लेसेस। मतलब आप अभी रैंडमली कर रहे हो राइट प्रोसेस, तो फर्स्ट सेकंड में नहीं मिल जाएगा, मतलब यू हैव टू एटलीस्ट अप्लाई टू 50 पीपल, and then वहां से definitely you'll find something which is like the best for you. Right, right. So finding out the companies again very very important, and the way you research it, the way you send your emails, and do not forget that I think Tushar mentioned regarding that you are supposed to also showcase the one pager document or one Yeah, pager two pager something document. whatever, Yeah, वन पेजर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मतलब आपका yeah. भी ब्लॉग है तो ब्लॉग की लिंक भेज दो, या जो भी है, मतलब लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड करते रहा करो कुछ भी कंटेंट है तो, whatever it is. राइट। तो कुछ यूनिक तो होना चाहिए यार, बिकॉज हम सीएस हाँ, हैं, देखो सभी सीएस हैं, और ये हमको नहीं दिखाना है ठीक है यार सभी टेक्निकल में स्ट्रांग है, दैट नोज दैट एंड दैट इज अ प्रूफ ऑफ हैविंग अ डिग्री अराउंड, राइट? बट एटलीस्ट यू आर सपोज टू शोकेस समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द पीपल, राइट? So I think Tushar, you mentioned regarding the top firms. So I have one more question regarding the top firms, right? So what are the top investment banking companies and the offerings of a job which are done by the top investment banking firms? so मतलब I think everybody would have heard about JP Morgan, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Bank of America, UBS. So these are multinational investment bank, मतलब हर country में होती है basically. So these are some of the firms जहाँ पे काफी सारी openings भी होती है, so you can go after them. Then उसके बाद second tier firms आती है, जो मैं first question में मैंने describe किया था कि काफी सारी firms cater to private markets, यानी private companies जो भी बहुत बड़ी नहीं हुई है, स्टार्टअप्स है, उनको काफी सारी कंपनीज केटर करती है। तो ऐसी 500-600 ऐसी फर्म्स होती है, एविंडस, O3 कैपिटल, स्पार्क कैपिटल, ऊना प्राइम जिसमें मैं वर्क करता हूँ। सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस, एज आई मेंशन कि वो जो मैंने फाइंड करने का तरीका बताया, लिंक्डइन पे जाओ, इन्वेस्टमेंट बैंक मुंबई सर्च करो, एंड देन यू विल कम अक्रॉस मेनी मोर नेम्स। सो या, बट दीज आर रिप्रेजेंटेटिव फर्म्स लाइक द टॉप टियर फर्म्स व्हिच आई मेंशनड। Right. Right. So those who are unable to get into the top firms, you can start with the small firms, or you can start with the internships with the big firms, right? At least एक entry point आप clear कर लो. Once that is done, it's again how you show work there, and फिर वो work के basis पे आपका decide होगा कि आगे आपको रखेंगे नहीं रखेंगे, right? But it's again very very important that how do you find the firms, how you send the mails around, right? So यार many बहुत सारे questions आ रहे हैं, and the people are joining as of now, and we can see around more than 150 people have joined from YouTube and Zoom. Right, really good to see that. So I think Gaurav is asking if someone is having a 5 years experience in the process of a transformation, and if he or she is passionate to get into IB sector, so can he get into that? सॉरी, Gaurav Mishra is प्रोसेस asking ऑफ this. Process transformation. अच्छा, प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन, ओके ओके, अंडरस्टूड। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू डू, मतलब आपको यहाँ जितना भी एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आपको थोड़ी बिजनेसेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू डू राइट नाउ, और इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू नो, यू कैन गेट इनटू आईबी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर कर लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है या कोई पर्टिकुलर बार नहीं है जो आपको क्रॉस करना पड़ेगा आईबी में होने के लिए। सो स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स है, थोड़ी जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस आना चाहिए। ये 3-4 चीजें आपके पास है, सो यू कैन अप्रोच एन इन्वेस्टमेंट बैंक। जो मैंने बताया था, वन पेजर डॉक्यूमेंट या कुछ भी आप शोकेस करने के लिए ले जा सकते हो, एंड देन यू जब इंटरव्यू होता है तो यू कैन प्रूव दिस टू देम
कि यार आपको पता है जनरल अवेयरनेस है मार्केट्स की, बिजनेस मॉडल आप फटाफट समझ लेते हो, जोमेटो ऐसे बिजनेस कर रहा है, स्विगी इतना डिलीवरी फीस चार्ज कर रहा है, ये सब आपको फटाफट समझ आ जाता है क्योंकि आप सोचते हो इन सब चीजों के बारे में, और इन सब चीजों को ढूंढना नहीं पड़ता। मतलब इफ समबडी इज थिंकिंग अबाउट देम दे वुड नो दिस। मतलब अगर मैं कभी भी फूड ऑर्डर करता हूँ, मैं चेक करता हूँ यार जोमेटो पे 45 रुपीज आ रहा है, स्विगी पे 60 रुपीज क्यों आ रहा है, या स्विगी 60% ऑफ हर रेस्टोरेंट पे दे रहा है, जोमेटो सिर्फ 2 रेस्टोरेंट पे क्यों दे रहा है। तो इफ आई थिंक अबाउट इट, मतलब मेरे पास बहुत सारी चीजें सामने आती है, मतलब टू यू which you can really share with people in these interviews, which really matters a lot because people really see this as a potential in the potential candidate कि यार मतलब उसको इतना in depth जाता है किसी business के, so this is something that we require in a candidate. तो irrespective of whatever you are doing right now, you can get into it क्योंकि हम सब कुछ ना कुछ तो businesses से related ही कर रहे हैं। मतलब आखिरकार मतलब कोई बिजनेस का ऑडिट कर रहा है, कोई बिजनेस का प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, कोई उस कंपनी का इंटरनल ऑडिट कर रहा है, तो हम बिजनेसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं किसी भी जॉब में, बिकॉज वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो फाइनेंशियल से रिलेटेड ही बिजनेस होती है सारी चीजें। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर वी आर डूइंग एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मतलब ये आर्टिस्ट के लिए नहीं है, कोई अगर पेंटिंग बना रहे हैं तो वो नहीं घुस सकता इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्योंकि वो बिजनेसेस से बहुत दूर है, इट्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू आर्ट, बट ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर डूइंग समथिंग विच इज रिलेटेड टू बिजनेस, so they are, it's very easy to get into it. Right. So, yeah, many of them has this question also. So, I'll also give a real life example. So, I'm also connected to 2, 3 investment bankers nowadays, right? So, they are into the fundraising process and helping out the companies to raise the funds, right? So, I'm also connected with them. So, I have seen the people, those who are in a CA interstate, as in those who are not able to clear the CA final, right? They are also the part of this process because they were able to analyze the business in much better manner, right? So it doesn't matter, guys, कि आपका CFA हुआ है नहीं हुआ है कितना हुआ है. More important is how better you can analyze the business, how better you can understand the business round. I think my voice breakdown. Just a second. So it's more important than how better you can analyze the things, how better you can read the things around. Yes, is my sound audible now? Yeah, it's audible, it's audible. Okay, I think there was a break in the sound. Okay, राइट. सो इट डजंट मैटर गाइस कि क्या लेवल है, बस ये ज्यादा जरूरी होता है कि आप बिजनेस को कैसे समझ रहे हो, एनालिटिकल हो नहीं हो, क्या सोच सकते हो, फ्यूचर प्रोजेक्शंस कर सकते हो, और क्या आपका थिंकिंग एबिलिटी स्किल्स कैसा है. तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होता है. सो there are again lot of questions which are asking, see nowadays many of them also says that to get into IB do an MBA. So is it a myth or is it the fact? यार मतलब इट डिपेंड्स, एमबीए ऑब्वियसली मतलब टॉप 2 3 कॉलेजेस से इफ यू डू एन एमबीए इट गिव्स एन एडवांटेज टू गेट इनटू आईबी, बट अब वो टॉप 2 3 कॉलेजेस आईबी में जाने से भी डिफिकल्ट है तो इट्स बेटर, मतलब इट्स नॉट रिक्वायर्ड पर्सनली, इफ आई वांट टू, if I have to share my opinion with you, it is not required. MBA is not required. मतलब you can get into an IB without an MBA as well. ये स्किल्स रिक्वायर्ड है जो मैं पूरे इंटरव्यू के दौरान मैंने मेंशन किया कि फाइनेंशियल एनालिसिस, बिजनेस एनालिसिस, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिजनेसेस की. सो दीज आर द थिंग्स दैट पीपल लुक फॉर. मतलब मोस्ट ऑफ द फर्म्स इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, 980 फर्म्स आउट ऑफ 1000 फर्म्स आर 10-20 पीपल फर्म्स. तो वो क्रेडेंशियल्स नहीं देखेंगे आपके कि आपने एमबीए किया, चलो टिक मार्क आ जाओ हमारी फर्म में. एमबीए इज अ सिग्निफायर, बट मतलब उनको ये इंपॉर्टेंट है कि ये बंदा काम कर पाएगा कि नहीं, मेरे लिए रेवेन्यू बढ़ा पाएगा कि नहीं, मेरे लिए नए स्टार्टअप्स ला पाएगा कि नहीं, जिनके लिए वी कैन रेज मनी. सो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम. वो लॉजिकली सोचते हैं इस चीज के बारे में जब भी वो किसी को इंटरव्यू कर रहे हैं. तो सो एमबीए मतलब it's, if you want to really get into those top 20 firms and if you are very keen about it, then maybe MBA would give you a slight edge. Then again, you have to balance कि यार मतलब अब MBA के लिए 1 साल प्रिपरेशन करो, 2 साल MBA होगा, तो 3 years आप पीछे हो जाते हो बाकी सबसे anyway. तो ये सब चीजों को आपको फैक्टर इन करके एक डिसीजन लेना पड़ता है. राइट. बट सो सिंपली पुट मतलब टॉप टियर फर्म्स के लिए MBA में भी इम्पोर्टेंट होता है, एंड अदर फर्म्स यू कैन क्रैक विदाउट even an MBA. Okay. So before we move into the opening of a question and answer for the students and the audience here out, I can see many of the students are getting and having a lot of questions around, right? Definitely you keep posting it out. I am also covering with the session as well. So people from YouTube, do not forget to like the video as well, so that this video can reach to the masses and the people can watch the video. Those who are having a doubts in investment banking, and also
you can post your question on YouTube chat box, right? So that we can cover your questions around, right? A lot of questions are again coming to that, but before I move into the opening of a forum for a public, I have a few questions again. So can you also brief us regarding the interview processes? And so you mentioned a lot of time with regarding the interview process the people and the CA students can get into, right? So say for example, I got a interview call from the IB firm, right? Now what's the process which they are going to be having, or what's the skill which they are going to be looking into, right? Plus also how long the interview process goes, and entire journey about the interview process. अंडरस्टूड सो डिपेंड करता है बट यूजुअली 2-3 राउंड्स होते हैं 1 or 2 टेक्निकल राउंड्स व्हिच इज मोर अबाउट व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन आपको क्या आता है टेक्निकली एंड देन लास्ट राउंड इज थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस करने के लिए फाउंडर्स जो रहते हैं जो भी सीनियर पीपल रहेंगे वो आपका थोड़ा क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे कि यू कैन प्रेजेंट योरसेल्फ वेल एंड यू स्पीक वेल इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट्स आउटगोइंग पर्सन तो ये सब चीजें होती है बट अगर आपको टेक्निकल राउंड की प्रिपरेशन के बारे में मैंने स्पीक अबाउट सो फर्स्ट इज ऑब्वियसली यू शुड हैव जनरल नॉलेज एंड देन यू शुड हैव स्पेसिफिक नॉलेज तो जनरल नॉलेज एज आई मेंशन न्यूज़पेपर रीडिंग से आता है you subscribe to Live Mint, Economic Times, any of the newspaper, and then you continue reading for a year, and you'll see the effect. मतलब you will see a significant increase in general knowledge. तो वो तो हम वैसे acquire कर सकते हैं. It's very simple. Now coming to specific knowledge is related to what you've already done. या फिर मतलब किसी चीज के बारे में आपको इंटरेस्ट है उस वजह से आपका स्पेसिफिक नॉलेज है तो अगर किसी ने जैसे मैं पहले बता रहा था ऑडिट किया है किसी भी से टेलीकॉम कंपनी का एयरटेल टाटा टेलीकॉम या रिलायंस जियो तो उसके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है टेलीकॉम सेक्टर में सो उस स्पेसिफिक नॉलेज को वी शुड ट्राई टू इंक्रीज जो हमें आता है हमें एंट्री पॉइंट पता है कि आज टेलीकॉम में 170 रुपए पर कस्टमर कंपनी कमाती है हर महीने ये हमारा एंट्री पॉइंट है तो अब कितने कस्टमर्स है हर एक कंपनी के पास थोड़ा सा एनालिसिस फिर हमें थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ती है न्यूज रिसर्च करनी पड़ती है एंड देन उस स्पेसिफिक नॉलेज को ट्राई टू इंक्रीज दैट स्पेसिफिक नॉलेज अभी जब व्हेन यू गो टू एन इंटरव्यू कुछ क्वेश्चंस जनरल होंगे कुछ क्वेश्चंस वो आपके रेज्यूमे देखेगा अच्छा टेलीकॉम कंपनी का ऑडिट किया है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा फिर वापस से जनरल पे मूव करेगा कि अभी फिर वो पूछ सकता है कि यार चलो रिसेंट में कौन सी डील्स हुई है तो आपने न्यूज़पेपर पढ़ रखा है तो पता है आपको अभी रिसेंटली जोमेटो का आईपीओ आया या जोमेटो ने ग्रोवर्स में पैसा डाला तो ये सब चीजें आपको पता रहती है क्योंकि आपको जनरल अवेयरनेस है आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और फिर अब वो डीप जाने की कोशिश करेगा अच्छा चलो बताओ जोमेटो और स्विगी में आपको कौन सा बेटर लगता है और क्यों लगता है तो अब आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज अगर आप फूड ऑर्डर करते हो तो आपको पता है कि यार जोमेटो का बहुत ही बड़ी बड़ी पिक्चर्स रहती है स्विगी का बहुत ही क्लीन इंटरफेस रहता है तो इस वजह से मे बी स्विगी लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं या लोगों को फूड की फोटोज पसंद है तो जोमेटो ज्यादा प्रेफर करते हैं वट एवर सो वो स्पेसिफिक नॉलेज और जनरल नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है विच इज मतलब अब वो बंदे की पर्सनैलिटी होनी चाहिए जनरली मतलब यू शुड बी वेरी क्यूरियस अबाउट एवरीथिंग so a curious person it would not be difficult for him to get into anywhere right so you correctly mentioned curiosity तो हमेशा रहनी चाहिए लाइफ में और इसलिए हम काफी सारे सेशंस भी करते रहते हैं एवरी वीक और वी एटलीस्ट वी हैव 2-3 सेशंस एवरी वीक राइट एंड वी ट्राई टू हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ session for every audience we have, right? So yes, curiosity is the key to success in life also, which I feel, right? And those who are preparing for the interview, right? So we have a upcoming batch starting from 6th, right? Definitely you can join our interview workshop batch, which is starting from 6th, where we are going to be helping you out end to end for interview preparations, and also we are going to be helping you out with the placement tips and how you can get into the different domains, right? So those who are interested, definitely you can register, and we are going to be starting our next batch from 6th of September, right? So yes, now opening the forum for a public, I'll request each and every one of you to please post your questions on a chat box. I'll cover one by one, right? So that any of the questions are not missed out. So Shivam Yadav, you are asking MBA from the college zaruri hai kya? Shivam, we have covered your question. You can go back and just rewind the video. You'll be able to find your answer. Tips or starting points to develop an edge. Sneha is asking, Tushar, any tips or starting points where you can develop an edge regarding या स्टार्टिंग पॉइंट जो भी आप कर रहे हो अभी करंटली मतलब कुछ ना कुछ आई थिंक इन्वॉल्व होंगे या तो किसी के साथ किसी का ऑडिट कर रहे होंगे या टैक्सेशन में तो किसी कंपनी का टैक्सेशन रिटर्न फाइल कर रहे होंगे सो दैट इज योर स्टार्टिंग पॉइंट या जो भी आपका इंटरेस्ट है मान लो आपको डोमिनोज बहुत पसंद है तो जो भी इंटरेस्ट है या कोई फैशन बहुत पसंद है किसी किसी लोगों को तो ट्राई टू आइडेंटिफाई कंपनीज इन दैट सेगमेंट उन कंपनीज के बारे में थोड़ा और पढ़ो क्योंकि आपका वो इंटरेस्ट भी है उस साइड तो आपको इजी होगा अंडरस्टैंड करना अच्छा यार फैशन सेगमेंट में ये बिकता है इस ब्रांड का प्रोडक्ट्स बिकता है अरविंद फैशन के प्रोडक्ट्स बिकते हैं या जो भी है तो
स्टार्टिंग पॉइंट इज जस्ट रिकॉग्नाइज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ एंड देन उसमें डबल डाउन हो। मतलब लोग क्या करते हैं, काफी सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, मतलब ये भी पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, इस सेक्टर का भी पढ़ रहे हैं, बट वो नॉलेज को थोड़ा सा मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक आने के लिए यू हैव टू पुट डाउन सम एफर्ट्स इनटू वन स्पेसिफिक थिंग, वन स्पेसिफिक फील्ड, या जो भी एक पर्टिकुलर सेक्टर है, या फूड डिलीवरी इंडस्ट्री हुई, एफएमसीजी सेक्टर हुआ, तो एक पर्टिकुलर लेवल पर आने के लिए जिस जिस लेवल के बाद यू कैन प्रेजेंट इट टू समवन, और आप डेप्थ बता सकते हो, आपको एफर्ट ज्यादा डालनी पड़ती है। सो आई वुड सजेस्ट, मतलब वन थिंग विच somebody कैन रियली इम्प्लीमेंट इज कि मतलब ट्राई टू फोकस ऑन लेस थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं कि हर चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, सब टाइप का जनरल नॉलेज ले रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में भी पढ़ना है, क्या हो रहा है बॉलीवुड में वो भी पढ़ना है, मतलब हर चीज नहीं। अगर आप पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हो तो पॉलिटिक्स बिजनेस को कैसे अफेक्ट कर रही है, ई कॉमर्स रेगुलेशन आ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ो और स्पेसिफिक उस चीजों में जाओ, घुसो, मतलब अच्छे से डेप्थ में जाओ, एंड देन यू कैन प्रेजेंट दैट स्पेसिफिक थिंग टू समवन। और आपकी जब डेप्थ किसी को दिखती है ना, सो पीपल आर सरप्राइज एंड देन दे विल हायर यू इमीडिएटली, बिकॉज पता चल गया यार ये बंदा इतनी डेप्थ में जा सकता है, तो वो हमारा तो कोई भी टास्क होगा आराम से कर लेगा, क्योंकि हर टास्क में इन्वॉल्व होती है एक ही पर्टिकुलर स्किल विच एवरीबडी नीड्स, इज कि आप डेप्थ में जाके फाइंड कर सको कि इसका रीजन क्या था, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या था, कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में वट एवर टास्क वी डू। सो दैट इज इंपॉर्टेंट, आई थिंक, गो इन टू डेप्थ। Great, great, great. So, Tushar, many of the people are also asking that can you also share your experience in the IBS? And now you have been working for a long time now, and it's your Lela, which I can say that, right? Yeah. So, just your experience, what all work you do, and what all work or the what all things you work around. या सो आई व्हाट आई डू इज आई गाइड यू थ्रू द एंटायर जर्नी, मतलब थोड़ा सा बताता हूँ कि हम एक इन्वेस्टमेंट बैंक में क्या क्या करते हैं, तो सम ऑफ इट आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड बट आई विल जस्ट Right. कंप्लीट द प्रोसेस। सो व्हाट वी डू इज, मान लो कि वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि हमें किस कंपनी के लिए फंड रेजिंग करना है। ठीक है, सो बिकॉज फंड रेजिंग करते हैं हम किसी के लिए भी, जैसे मान लो जोमेटो के लिए वी रेज 100 करोड़, तो देन उसमें से हमें 2-3% मिलेगा, 3 करोड़, सो दैट इज अ रेवेन्यू। सो वी हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई अ कंपनी, राइट, कि यार कौन सी कंपनी के लिए फंड रेजिंग करना चाहिए। तो हम ऐसे ढूंढेंगे, जोमेटो ढूंढ लिया, स्विगी ढूंढ लिया, पेटीएम ढूंढ लिया। अभी अभी हमें इन तीनों कंपनी को बताना पड़ेगा कि वी आर द बेस्ट पीपल हु कैन डू फंड रेजिंग फॉर यू। सो विल गो टू ईच ऑफ देम एंड पिच। बाकी भी दूसरी जो इन्वेस्टमेंट बैंक है, जैसे उना प्राइम के कॉम्पिटिटर्स है, वो भी जाएंगे उनके पास पिच करने के लिए। सो फर्स्ट हमारा फर्स्ट पॉइंट इज पिचिंग, जो हम करते हैं, तो हम एक पिच डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, 5-10 स्लाइड का। हम बताएंगे कि जोमेटो ऐसी कंपनी है, इसको ऐसे पिच करना चाहिए, तो इन्वेस्टर्स इसको इतना ज्यादा वैल्यूएशन देंगे। तो कंपनी को कन्विंस होना चाहिए कि दीज आर द बेस्ट पीपल दैट आई शुड हायर टू रेज मनी फॉर मी। ये इन लोगों को मैं इन्वेस्टर के पास भेजूंगी ताकि मेरे को ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएशन मिल पाए। सो दैट इज कंपनीज ऑब्जेक्टिव, तो इसलिए पिच करते हैं। ठीक है, अब अगर जोमेटो को पसंद आ गया, चलो उना प्राइम इज द बेस्ट फर्म, ये सबसे अच्छे से पिच करेंगे, हमको सिलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट वील डू इज वील गेट इनटू एन एंगेजमेंट, एक एंगेजमेंट लेटर साइन होता है कि जोमेटो ने इनको उना प्राइम को रख लिया है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, चलो अब हमें इन्वेस्टर के पास जाना है जोमेटो के लेकर, राइट, तो हम उसका प्रिपरेशन चालू करते हैं। तो अब हम एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, 20-30 पेजेस की स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन बनेगी, जिसमें जोमेटो के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, फाइनेंशियल एनालिसिस, फिर जोमेटो कैसे की प्लेयर होगा 5 साल बाद, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर फूड डिलीवरी में और दूसरे जो भी बिजनेसेस में वो है, ग्रोसरी डिलीवरी में, या जोमेटो कैसे सबसे अच्छा प्लेयर होगा, वो हमें पूरा अपना जो थीसिस है, हमारा जो थॉट प्रोसेस है, वो एक प्रेजेंटेशन में पुट करना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन आती है इस टाइम पे, राइट। अब एक बार आपने प्रेजेंटेशन बना ली, एक मॉडल बना लिया, जो हम फाइनेंशियल मॉडल के बारे में बात कर रहे थे कि 5 साल के प्रोजेक्शन निकालना है, ये लेके हम इन्वेस्टर के पास जाते हैं। अब इन्वेस्टर के पास जाएंगे, इन्वेस्टर देखेगा, अच्छा चलो ठीक है, इंटरेस्ट है, ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है, ये सेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी प्रेजेंटेशन देखेगा, वो उसके थ्रू उसको लगेगा हाँ यार चलो इसमें थोड़ा मैं और अंदर घुसना चाहिए, मतलब इंटरेस्ट है प्राइमरी लेवल पे। अगर प्राइमरी लेवल पे इन्वेस्टर को इंटरेस्ट होता है तो वो 20-30 क्वेश्चन की लिस्ट भेजता है हमें कि चलो बताओ इनका एक ऑर्डर की वैल्यू क्या रहती है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है, इनके कितने कस्टमर्स है, कितने कस्टमर्स हर महीने ऑर्डर करते हैं, कितने कस्टमर्स हर दिन ऑर्डर करते हैं, या जो भी है। तो ऐसे इन्वेस्टर्स के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टू एंड फ्रो 100 क्वेश्चन आएंगे, और फिर हम मैनेजमेंट के साथ कॉल करेंगे, बिठवाएंगे उनको, कुछ क्वेश्चन हम खुद आंसर कर देते हैं। वंस दिस प्रोसेस, फिर एक महीने बाद ये सब चीजें ओवर हो जाती है, जब इन्वेस्टर को लगा हाँ चलो अब मैं संतुष्ट हूँ, मुझे समझ आ गया है पूरा जोमेटो का बिजनेस कैसे चलता है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिजनेस, तो इन्वेस्टर उसके बाद क्या कहता है, इन्वेस्टर बोलेगा चलो अब हम है ना एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट ले लेते हैं। नॉन बाइंडिंग मतलब अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ कि मैं तुम्हें पैसा डालूंगा, बट मुझे प्रिलिमिनरी इंटरेस्ट है और काफी अच्छे लेवल का इंटरेस्ट है,
तो अब आपने जो भी बोला है अभी तक इन्वेस्टर को, जोमेटो ने जो बोला है, आपने जो बोला है कि यार 300 रुपए की एक ऑर्डर होता है और इनका 50% से सेल्स ग्रोथ हो रही है, जो भी आपने बोला है वो इन्वेस्टर चेक करेगा कि ये चीजें सही है कि नहीं। तो एक ड्यू डिलिजेंस की एजेंसी जो डेलॉइट ईवाई ये सब करते हैं, वो अपॉइंट करता है, जो ये चेक करती है कि इन्वेस्टर ने जो जोमेटो ने जो हमें बताया है वो सही है कि नहीं। तो हम ये पूरा प्रोसेस मैनेज करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंक, कि यार ड्यू डिलिजेंस के लिए सारा डेटा जा रहा है कि नहीं इन्वेस्टर को, कि मतलब अब हमें भेजना पड़ेगा, राइट? वो एमआईएस जो बोलते हो आप, एमआईएस जो बनता है कंपनी का, वो हमें भेजना पड़ेगा उनको। सारी चीजें एमआईएस से जाती है, फिर हम सारी चीजों को प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में करते हैं। फिर वो कुछ चीजों के रीजन पूछेंगे कि यार जनवरी से फरवरी में सेल्स डाउन क्यों थी, तो हम उसका एक रीजनिंग भेजेंगे, पूरा कंपनी से के साथ मिलके बन के बनाएंगे। एंड देन ऐसे फिर डेटा एक्सचेंज होता है, सारी चीजें फिर एक बार ड्यू डिलिजेंस एजेंसी के पास चलेगी। फिर वो कुछ रेड मार्क्स लगाते हैं कि अच्छा चलो यार ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, इनका डिलीवरी कॉस्ट 65 रुपीज है जबकि स्विगी का सिर्फ 55 रुपीज है। ऐसा क्यों है, मतलब ये ज्यादा दूर की डिलीवरी करते हैं या जो क्या है, क्यों इतना डिलीवरी कॉस्ट आ रहा है इनका। तो ऐसे कुछ कुछ इंडिकेटर्स आते हैं। फिर अब इन सब चीजों को लेके जब पूरा डेटा आ गया इन्वेस्टर के पास, फिर इन्वेस्टर नेगोशिएशन करने बैठता है कि चलो अब डिसाइड करते हैं। तो अब हमारा नेगोशिएशन वाला रोल होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था, पिचिंग की थी, हमने कॉपी राइटिंग की थी, स्टोरी बनाई थी, वैल्यूएशन फाइनेंशियल एनालिसिस किया था, प्रेजेंटेशन बनाई थी। अब हम नेगोशिएट कर रहे हैं वैल्यूएशन पे कि जोमेटो 10,000 करोड़ पे होना चाहिए या 20,000 करोड़ पे होना चाहिए। फिर वो बोलेंगे यार इनकी डिलीवरी कॉस्ट ज्यादा है, ये इतने एफिशिएंट नहीं है, इनके प्रोसेसेस इतने एफिशिएंट नहीं है, तो 10,000 करोड़ वैल्यू करना चाहिए। फिर हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, हमारी सेल्स ग्रोथ 50% है तो 12,000 करोड़ वैल्यूएशन होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मतलब मैं बहुत सिंपली बता रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे चीजें होती है, एलिमेंट्स होते हैं एक बिजनेस में जिसके बारे में नेगोशिएशन डिस्कशन होता है। तो उसमें हम पार्ट लेते हैं। एंड देन वंस एवरीवन अग्रीज कि यार चलो इस वजह से सब चीजें नोट डाउन हो गई है, इसमें ये जोमेटो में ये अच्छा है, ये बुरा है, तो इस वजह से इनको 15,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिलना चाहिए। एक बार अग्री होता है तो सारे डॉक्यूमेंट साइन कर लेते हैं और डील हो जाती है, वैसा। सो दिस इज मतलब इन सिंपल वर्ड्स व्हाट वी डू। थोड़ा Great. लंबा लिख खींच लिया मैंने No, शायद। no, no, no. Really great. Everyone was enjoying the process, right? And even या nowadays, this the process is going on. And just a fun fact: every time investor wants to value a firm at a lower price, and every time the owner wants that the valuation should be at a higher price, तो वो एक अच्छा debate होता है, right? Which I have also seen, right? So काफी मजेदार discussion होता है, right? So when you pitch या someone or when some investors comes to you, right? तो काफी अच्छा होता है, interesting discussions होता है. So yes, that is there about the entire process, right? Palak is asking differentiation between an FP&A and IB role, right? So both roles are completely different, right? So I think Palak, your doubt has been already cleared. CFA degree important for IBA. Harsh, your doubt is already cleared. Please, you can rewind the video and you can just check it out. Is risk advisory a good career choice? So we'll have a different session for this, Ruby, right? So we have a different session for this. This session is specifically regarding an IB. Next, someone is asking, is transaction advisory good to start for IBs for CA? Tushar, yeah. ट्रांजैक्शन एडवाइजरी, या ओके। Yeah. सो ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में बेसिकली क्या होता है कि ट्रांजैक्शन एडवाइजरी में दो तीन काइंड ऑफ सर्विसेज होती है। तो आपने बिग फोर में अगर काम किया है, किसी भी बड़ी फर्म में काम किया, तो एक वैल्यूएशन होता है, एक ड्यू डिलिजेंस होता है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होती है। तो ये तीन चीजें मतलब इंपॉर्टेंटली ट्रांजैक्शन एडवाइजरी का पार्ट होती है। तो सबसे इजी होता है एंट्री करना ड्यू डिलिजेंस में, सेकंड लेवल वैल्यूएशन, थर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो ऑब्वियसली ये क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एंट्री होती है, तो अगर आपने ड्यू डिलिजेंस कर रखा है, तो आपने थोड़ा फाइनेंशियल एनालिसिस कर रखा है, जैसा मैं बता रहा था अभी, ड्यू डिलिजेंस Right. वाली एजेंसी बिल्कुल कंपनी में घुस जाती है, उनको थोड़ी अवेयरनेस होती है कि प्रोसेस कैसे रन होता है। तो दे हैव सम एडवांटेज कंपेयर टू ऑडिट कैंडिडेट। तो ऑब्वियसली ड्यू डिलिजेंस इज बेटर सूटेड, और या फिर इंटरव्यूज को ज्यादा वेट देगा तो अगर वो आईबी का इंटरव्यू कर रहा है, क्योंकि उसको ऑलरेडी प्रोसेस पता है, राइट? ड्यू डिलिजेंस कर रखा है, ड्यू डिलिजेंस आईबी का ही पार्ट था, मैंने बताया था जैसे। Right. उसके बाद वैल्यूएशन होता है, राइट? अभी मैं बता रहा था आईबी का जब हम प्रोसेस रन कर रहे थे तो हम वैल्यूएशन कर रहे थे, फाइनेंशियल मॉडल बना रहे थे। तो वैल्यूएशन क्या होता है, वैल्यूएशन में भी आपको ये करना पड़ता है, आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना पड़ता है, 5 साल के कैश फ्लो, 5 साल की सेल्स प्रोजेक्ट कर लो, पूरा इनकम स्टेटमेंट बना लो, बैलेंस शीट बना लो, कैश फ्लोज बना लो, फिर कितना आपका नेट कैश फ्लो आ रहा है हर साल का, उसको 10% 15% के वैग से डिस्काउंट करके आपका वैल्यूएशन आ जाता है सिंपल टर्म्स में। तो ये आपको करना पड़ता है वैल्यूएशन में। अभी मैं बता रहा था आईबी में हम फाइनेंशियल मॉडल बना रहे थे, हम नेगोशिएशन कर रहे थे वैल्यूएशन के बारे में। तो ये कुछ कुछ स्किल्स है जो बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रहती है आईबी में। तो दैट इज वाई दीज पीपल वुड बी प्रिफर्ड।
तो आपको अगर ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज में वैल्यूएशन और ड्यू डिलिजेंस का रोल मिल रहा है, I don't know whether there is any other role or a person is referring to any other role, but अगर ड्यू डिलिजेंस और वैल्यूएशन का रोल मिल रहा है, then it's a step up जिससे आप आईबी की तरफ जा रहे हो. Right. Great. So really good to hear that out. CFA is done. IB prefer rank holders only. No, we have cleared it out, Kushbu. Have heard that one wish of sound work, life balance get completely shattered. We have already covered this. Can a CA fresher without rank already covered this? You can just rewind the videos, guys, and you'll be able to find the answers right after the session is done. Don't worry, I'm going to be putting a timestamp on YouTube. We don't understand Hindi. Okay, so sorry. Starting salary of an investment banker. Okay, so we already mentioned the range around, right? Definitely the salary is going to be on a higher side as compared to the normal guy, right? Is it necessary to have a prior internship? So prior internship is not necessary. Definitely it's going to be adding an edge to your profile. I have done an investor pitch deck during the articleship for pitching to VCs. Will this be of any value? Yes, definitely it's going to be adding a value provided how you present it on your email and when you're approaching the company. Is top IB firms hire fresher candidates? So what's the scene of Tushar hiring a top IB firms hiring a fresher qualified CAs? So इसका एक्चुअली मतलब टॉप आईबी फर्म जैसे जेपी मॉर्गन होती है, डॉयशे बैंक होती है, तो उनमें दो डिविजन्स होते हैं. एक तो आईबी का फ्रंट एंड होता है जो इंडियन ऑफिस बोलते हैं जिसको हम, तो बेसिकली वो इंडियन क्लाइंट से डील कर रहे होते हैं. तो जैसे वो जोमेटो वगैरह के आईपीओ में इन्वॉल्व होंगे, वो छोटी सी टीम होती है 20-25 लोगों की. उसमें ज्यादातर एमबीए कैंडिडेट्स होते हैं जो मैं पहले मेंशन कर रहा था. कुछ कैंडिडेट्स नॉर्मल रूट से भी आते हैं, बट मोस्टली दोज आर IMA BC कैंडिडेट्स. बट इनका एक और डिवीजन होता है विच इज लाइक अ 200 पीपल टीम विच दे ऑल्सो डू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. बट ये क्या करते हैं, दे असिस्ट यूएस में जो जेपी मॉर्गन का डिवीजन है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन है, उसमें आप यूएस वाले डिवीजन के एनालिस्ट या जो भी लोग वहां काम कर रहे हैं उनके साथ काम करते हो. तो आप बैठते ही यही हो बट काम उनके लिए करते हो. तो ऐसे हर बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक में 200-200 लोगों की टीम होती है. एंड दिस इज कंपेरेटिवली इजियर टू गेट इनटू बिकॉज 200 लोग हैं, ऑब्वियसली तो हायरिंग ज्यादा लेवल पे होती है. एट द सेम टाइम क्योंकि थोड़ा जॉब क्लाइंट फेसिंग नहीं है तो कम लोग इसको प्रेफर करते हैं. बट दिस इज अ गुड एंट्री पॉइंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट बिकॉज आपको पता चल जाता है कि आईबी में क्या होता है, क्योंकि आप आईबी में ही काम कर रहे हो. बट आपको पूरा प्रोसेस समझ आ जाता है कि आईबी में क्या क्या होता है, वैल्यूएशन होता है, कैसे प्रोसेस रन होते हैं, पिच कैसे करते हैं, सब चीज आप सीख जाते हो यहाँ पे. फिर उसके बाद 1-2 साल यहाँ पे काम करके आप एग्जिट ले सकते हो किसी बेटर इन्वेस्टमेंट बैंक में, या फिर मे बी किसी फंड में चले जाओ जहाँ पे आप इन्वेस्टर बन जाओ. तो वहां पे से काफी अच्छे एग्जिट्स भी मिलते हैं. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी दैट समबडी कैन एक्सप्लोर एज अ फ्रेशर. एज अ फ्रेशर इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको मतलब जेपी मॉर्गन की 15-20 लोगों की जो टॉप टीम है उसमें हायर कर लेंगे. मतलब प्रोबेबिलिटी वाइज द प्रोबेबिलिटी इज लोअर, सो आई विल नॉट से कि यार मतलब कर लेंगे आपको मोटिवेट करने के लिए. बट आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल रूट बाय विच यू कैन गेट इनटू जेपी मॉर्गन वो टॉप 20 वाला. 1-2 years का एफर्ट है, बट 2-3 साल तो एमबीए में भी लगे जाते हैं ना. तो वैसे मतलब इफ यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ गुड bet to take. Right. Great. Arun, I think Arun is asking, can we have an interview preparation? Yes, Arun, our batch is going to be after the results as well. But I'll recommend you to join early because after the results, abhi daudte hain job ke liye and better you're prepared early for the interview preparations. How can we get an interview call? Definitely you'll be getting an email. You are supposed to send the profile as in the तुषार मेंशन राइट. आप वैसे करिए, आपको डेफिनेटली मेल आएंगे. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 मेल भेज के यू आर just saying that okay, I have sent a lot of mails today. Keep sending it mail, keep hunting it out, right? What kind of specific technical knowledge, I think this we have already covered, Khushbu. While learning these things, there are any suggestions? Yeah, so Tushar, any suggestions for our CA folks now? I think many of them are waiting for the results and very lot of uncertainties around the results till now, as someone is saying 15th or 20th or between this date. So again, a lot of uncertainties is there. So anything which you can recommend यार मतलब अभी आपके पास 10-15 days है, तो मतलब what you can do is to get advantage over other people, क्योंकि this is competition again. एक limited number of jobs है जिसको जितने भी 5-10 हजार लोग पास करेंगे, they will approach that job, right?
So you have to get an advantage to prove to the interviewer that you are the best suited for the particular job. So वही जो मैंने बताया था यार, वन पेजर थीसिस बनाओ, रिसर्च करो ऑलरेडी, थोड़ा न्यूज़पेपर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, थोड़ा स्पेसिफिक नॉलेज जो भी आपने आर्टिकलशिप में किया था, मान लो किसी पर्टिकुलर स्टील इंडस्ट्री में काम किया था, अभी थोड़ा इतना मतलब याद नहीं है, बट और डबल डाउन करो, देखो कि और क्या क्या होता है, टाटा स्टील की एनुअल रिपोर्ट निकाल लो, आजकल तो ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी मिल जाती है फ्री में गूगल पे। तो जस्ट आइडेंटिफाई दोज थिंग्स एंड मतलब उसमें थोड़ा डबल डाउन करो और पहले से प्रिपेयर रहो, मतलब उसमें क्योंकि 15-20 दिन का प्रोसेस है, मतलब एक दिन में कोई चैंपियन नहीं बन सकता, राइट? तो अभी के पास 10-15 दिन है, तो एटलीस्ट पुट डाउन सम एफर्ट इन वन पर्टिकुलर सेक्टर जो भी आपने ऑडिट टैक्स में कवर किया है, जो भी आपको इंटरेस्टेड सेक्टर है, और थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ो। आई थिंक दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। और वो जो जनरल इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं उनकी थोड़ी प्रिपरेशन कर लो कि Right. मतलब वो तो एवरी आई थिंक सी monk would be taking care of that. Right. So again, someone is asking that can you share the list of questions? Yes, I'll share the list of questions, guys. Don't worry. Right. Again, I will be connecting with Tushar, and I'm gonna be helping you out with the questions as well. What is the work in M&A acquisitions, merger and acquisitions? Can you just also give a brief about it, if possible? Yeah. So M&A, as I mentioned, मतलब M&A यानी मर्जर, यानी क्या होता है, आपने एसएफएम में पढ़ा है, दो कंपनी, इक्वल कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो रही है और वो एक कंपनी बन जाती है। तो आई थिंक सबसे रिसेंट एग्जांपल, आई कांट रिकॉल एनी एग्जांपल, बट मान लो जोमेटो और स्विगी है, वो एक दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो दैट इज अ मर्जर। एक्विजिशन क्या होता है, अभी जोमेटो ने इसमें पैसा डाला था ग्रोफर्स में 10% स्टेक के लिए, अब अगर जोमेटो उसका 60% स्टेक अक्वायर कर लेता है तो इट इज अक्वायर्ड बाय जोमेटो, तो वो जोमेटो के बिजनेस का पार्ट होगी, तो दैट इज एक्विजिशन। तो मर्जर एंड एक्विजिशन इज बेसिकली कंपनी का मिलना जुलना, ऐसा सोच सकते हो आप सिंपल वर्ड्स में। तो इसमें बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या एडवाइस करता है, इन्वेस्टमेंट बैंकर ढूंढेगा कि चलो जोमेटो है, जोमेटो को किस टाइप की कंपनीज एक्वायर करना चाहिए, तो जोमेटो के बिजनेस से जो रिलेटेड, अब जोमेटो फूड डिलीवरी के बिजनेस में तो ऑलरेडी है, अब लोग आते ही उसके प्लेटफॉर्म पे फूड ऑर्डर करने के लिए, तो ग्रोसरी भी ऑर्डर कर ही सकते हैं, राइट? तो ग्रोसरी डिलीवरी एक अच्छा ऑप्शन है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर सजेस्ट करेगा चलो यार आप ग्रोफर्स में थोड़ा सा स्टेक ले लो या ग्रोफर्स को अक्वायर कर लो, क्योंकि इट्स अ गुड बिजनेस जिसमें आप घुस सकते हो। वैसे ही टाटा टाटा ट्रेंट मॉल्स है उनके काफी सारे, राइट? जो जिससे वो ग्रोसरीज वगैरह बेचते हैं, तो उनका ऑफलाइन प्रेजेंस है ही, अब उन्होंने सोचा चलो हम ऑनलाइन प्रेजेंस भी कर लेते हैं, तो उन्होंने बिग बास्केट को अक्वायर कर लिया बस। तो वो मर्जर्स एंड एक्विजिशन डिवीजन ये एडवाइजरी करता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि किसको अक्वायर करना चाहिए, किसके साथ मर्ज होना चाहिए, एंड देन वो ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है, जो मैंने बताया था कि क्या क्या काम करता है इन्वेस्टमेंट बैंक। तो पूरी ट्रांजैक्शन में क्लोज करने में भी हेल्प करेगा कि एंड में दोनों अक्वायर भी हो जाए या मर्ज हो जाए। Right. Anant is asking, can data science skills such as a Python and ML help non-rankers CA fresher to get into? हाँ, so non-ranker CA fresher छोड़ दीजिए एक बार के लिए, but does the skills like a data science such as a Python and the ML learning gonna be helpful? I don't think so, मतलब maybe there are multiple other areas like stock market जहाँ पे ये सारी चीजें काम आ सकती हैं, people firms look for that particular skill, but specifically in investment banking, since I described the process, negotiations, pitching, valuation, financial analysis, business model understanding में कहीं पे भी ये चीज required नहीं है। तो as such इतना कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं है, बट आई वुड सजेस्ट कि मतलब मे बी देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलावा तुम दूसरी चीजें देखो, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म्स, बिकॉज ये काफी सारे बड़े बड़े डेटा सेट्स पे वो रन करती है कि मतलब यार पिछले 20 साल में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या रिटर्न दी है, क्या डिविडेंड डील दी है, तो उसके लिए वो सॉफ्टवेयर बिल्ड करती है। सो वहां पे मे बी योर नॉलेज वुड बी यूजफुल, सो जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट वेयर योर नॉलेज कैन बी यूजफुल। Investment bank may probably not so much, but yeah, other places it would be. Okay. Great. Sir, do hedge fund accounting helps to start? I think this we have done. Uh, can data science, again, same question. Does the courses such as wealth management offered by Crisil gives an edge? Oh my God. ये क्या है? See, again, at the end of the day, you need to see what is the value which is going to be adding these, right? तो आप कितने एनालिटिकल बन पा रहे हो, कैसे आप चीजों को प्रेजेंट कर रहे हो, वो चीज आप देखिए। तो 1000 कोर्सेज मिल जाएंगे, बट आप ये देखना है कि आपके लिए कौन सा रिलेवेंट कोर्स है, राइट? व्हाट इज अ in your opinion fresher taking a backend role, right? So this of the many of the questions a student asked this, many of the students or many of the qualified CAs get a backend role, right, in the IB firm. So whether they should go for this or not.
So as I described earlier, मतलब back end role is a good entry point again. Internship के अलावा it's a good entry point क्योंकि internship में आपको सैलरी भी कम मिल रही है. Back end role में सैलरी भी अच्छी मिलती है अगर IB वाला back end role है, right? IB वाला मतलब there are Hmm. thousands of back end roles. hedge accounting होता है, then there are other product management होता है, बहुत सारे back end roles होते हैं. But IB वाला अगर आपको back end role मिल रहा है जिसमें आप investment banking कर रहे हो, but US, यूरोप या एशिया के लिए कर रहे हो, तो it's a good starting point. आई वुड से मतलब 1-2 साल अगर आप किसी बड़ी ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो तो you'll get a good exit opportunities with multiple investment banks in India जो इंडिया में बिजनेस कर रही है आफ्टर 1-2 years बिकॉज आपको समझ आ गया है कैसे होता है धंधा राइट. Hmm. Hmm. Right, 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 right. Someone is asking what is the difference between IB firm and VC firm? सो आईबी फर्म क्या करती है अभी मतलब जैसे कोई स्टार्टअप है बहुत नया स्टार्टअप है राइट अभी एक जैसे जेप्टो करके स्टार्टअप है मुंबई में जो 10 मिनट में फूड ग्रोसरी डिलीवर करता है. ठीक है अभी वो स्टार्टअप है. अब हम स्टार्टअप को पैसे चाहिए मतलब ग्रोसरी फ्री में डिलीवर कर रहा है शुरू शुरू में कस्टमर्स को लाने के लिए मार्केटिंग करने के लिए पैसे रहेंगे. तो आईबी फर्म के पास आएगा वो कि चलो यार हमारे लिए थोड़ी फंड रेजिंग करा दो 50 करोड़ चाहिए. तो आईबी फर्म क्या करेगी उसको एक वीसी के पास ले जाएगी जो जिसके पास पैसा होता है और जो पैसा डालता है इन सारे स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटलिस्ट. तो हम आईबी फर्म उस वेंचर कैपिटलिस्ट के पास ले जाती है जेप्टो को और फिर वेंचर कैपिटलिस्ट को पसंद आया तो वो 50 करोड़ डाल दे. तो वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्ट करता है. आईबी फर्म फैसिलिटेट कर रही है इन दोनों का मिलना और पूरे ट्रांजैक्शन को क्लोज करने. Right, 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 right. So, guys, the people from YouTube, yeah, I think many of the questions, I think I have already covered it. Just you just rewind it whenever you are free or whenever you are done with the session, right? Your question will be answered, right? Again, MBA question and the same question have been asked again the CFA one. So sorry, I'm missing out those questions because I think we have already covered it. Uh, if we are not able to join an IB, then what role should we target in Big Four? I think we already mentioned around this, right? Which all roles you should look into, and which option is better backend. Again, this is done. Attempt better is done. I think many of you have been repeating the same question. Uh, is Goldman Sachs also an IB company and how we can get into that? So don't worry for Goldman, I'm gonna be issuing Know Your Company guide, right? So we are reviewing each and every company nowadays. So you keep connected, right? I'll try to upload on a Goldman by tomorrow or day after tomorrow. It's ready with us, right? Don't worry, I'm gonna be telling you the end-to-end process for a Goldman, right? If anyone has a more specific question which has been left again, so sorry if in case I forgot any of the question, just you can post it on a chat box, right? There are many rules for which there are openings. How do we understand the backend options? Definitely, yeah, you're supposed to read the role, understand, and talk to the peer. And सो also आई during थिंक the दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सो आई टेक इट. सो right. एक्चुअली क्या होता है कि मतलब बैकएंड वाले रोल में मतलब लॉट ऑफ पीपल कम टू मी कि यार ये वाला रोल आईबी रिलेटेड है कि नहीं है. तो जो भी Okay. मैंने अभी चीजें बताई है तुम्हें कि M&A मतलब फाइनेंशियल मॉडलिंग करना पड़ता है प्रेजेंटेशंस बनाना रहता है. तो अगर ऐसा बैकएंड रोल है जो ये सब चीजें बता रहे हैं रिसर्च प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन क्लाइंट पिचिंग तो ये बैकएंड रोल आईबी वाला बैकएंड रोल है. अगर कोई दूसरा बैकएंड रोल है उसमें ये सब चीजें नहीं होगी उसमें कुछ टेक्निकल सा लिखा होगा राइट. तो आपको अगर आईबी वाला बैकएंड रोल फाइंड करना है तो सेम चीजें जो मैंने आईबी में बताई होती है. आइडेंटिफाई करो कि यार रिसर्च कर रहे हैं कि नहीं इसमें इसमें पिचिंग करनी है कि नहीं इसमें वैल्यूएशन मॉडल बनाना है कि नहीं इसमें फाइनेंशियल मॉडल बनाना है कि नहीं जो भी है. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोस क्रिटिकल की पॉइंट्स की आइटम्स या की वर्ड्स उसमें जो भी उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया एंड ऑलवेज आस्क फॉर जॉब डिस्क्रिप्शन और उसको रीड करो. एंड आई थिंक कोई ना कोई फ्रेंड मिल ही जाता है जो ऑलरेडी इसमें वर्क कर रहा है उससे बात करो. वैसे नहीं तो यू कैन अप्रोच मी ऑन लिंक्डइन मैं बता दूंगा वैसे. Right, right. Now someone has started asking how much stipend I should expect getting for getting into IB. यार So एक दो sorry, yeah. साल जॉब में स्टाइपेंड वगैरह मत सोचा करो. जस्ट ट्राई टू Yeah. फोकस ऑन हाउ गुड अ रोल इज एंड देन Right, आपको स्टाइपेंड का बोलना नहीं पड़ेगा सामने से मिलेगा जो भी right, है. right. Capability, quality रहेगा तो वैसे इंसान दे या देता है, right? करेक्ट. So develop that. So I think, yeah. So what soft skills are as in more important? So what's your take on this for IB? ऑब्वियसली मतलब प्रेजेंटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब यू शुड बी प्रेजेंटेबल एंड यू शुड कन्विंस द अदर पर्सन अबाउट योर पॉइंट. मतलब आपका अगर कुछ दिमाग में ओपिनियन है सो यू शुड बी एबल टू आर्टिकुलेट दैट ओपिनियन वेल. बताओ कि ये फैक्ट्स बैक्ड ओपिनियन है. अगर आप उसको अच्छे से कन्वे कर सकते हो तो देन इट्स द बेस्ट स्किल यू हैव. मतलब आप अपनी क्योंकि पीपल लाइक अदर पीपल हु कैन कन्वे देयर ओपिनियन वेरी वेल थ्रू सर्टेन फैक्ट्स. So I think presentation and convincing skills are very important.
राइट। और कहीं ना कहीं वी सीएस आर टू बी ऑनेस्ट लैकिंग ऑन दिस, ट्रस्ट मी गाइस, बिकॉज हम Yeah. टेक्निकल में तो बहुत अच्छे हैं बट वी आर नॉट गुड एट द presentations and the communication front. So I'll request everyone to please improvise on that, right? Last question here. I think it's also time to wind up the session. So last question, Tushar, can you also just tell us few important questions or few interview questions which are asked to you during the time of IB when you are giving an interview? Just any of the questions which you can think of. या श्योर. सो एक्चुअली मतलब बहुत सारे क्वेश्चन स्पेसिफिक होते हैं आपके रेज्यूमे से, बट मतलब M&A डील्स के बारे में पूछ लेते हैं. जैसे मुझे पूछ लिया था उस टाइम पे आईबीसी, जो अपना इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है, उसमें केस लॉज बताओ. मतलब उसमें जैसे आर्सिलर मित्तल का एक केस हुआ था उस टाइम पे. आर्सिलर मित्तल वाज अक्वायरिंग वन ऑफ द स्टील कंपनी, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट पास किया था. और फिर ऐसी एक अल्ट्राटेक सीमेंट और बिनानी सीमेंट का केस लॉ था, तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आई थी, फिर लास्ट में क्या रेजोल्यूशन निकला था. तो जो भी मतलब बेसिकली रीसेंट न्यूज आइटम्स थे उनसे उन्होंने उठाया. और मैंने बोला था कि मैंने आईबीसी पढ़ रखा है, आईबीसी में काम कर रखा है, तो उन्होंने आईबीसी पकड़ा और फिर उसको मिक्स करके मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, बताओ क्या हुआ है आईबीसी में, क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं, क्या क्या रिसेंट अभी केस लॉज पास हुए हैं, क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स है. तो आई थिंक वो एक स्पेसिफिक चीज उठाते हैं आपके रेज्यूमे से, उसको कनेक्ट करते हैं कोई रीसेंट न्यूज आइटम से और आपसे पूछ लेते हैं आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में. Right. So, guys, I hope you will be preparing for all this, right? I think many of the similar faces which I can see of a GI11, most of the GI11 students which I can see, right? So, this is the best which I can see, which we have trained recently for the interview. So, guys, आप ये चीज का ध्यान में रखो जो भी ये चीज prepare कर रहे Yeah, हैं. also I And think one I thing think that those I who are missed. unable to answer the question, so sorry because of our. Mm-hmm. Yeah, Yeah. sorry. So one thing that I missed is कि मतलब थोड़ा सा I think I referred to it once. एसएफएम में जो आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन से रिलेटेड जो भी चैप्टर्स है उसको अच्छे से पढ़ो, कि ये काफी रेकरिंग क्वेश्चन होता है. फ्री कैश फ्लोज कैसे निकालते हैं और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है. सो जो एसएफएम के कॉन्सेप्ट है उसको काफी अच्छे से करो, मतलब उसको इग्नोर मत करो. इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, सो refer that as well. So I think that is also important. So I think if you combine all of this, you will be a very good candidate to get selected in any firm. Right. So before we conclude this session, right, we'll also have a group photo as well. The people, those who have joined from a Zoom. So I'll request, please do not leave. Right, and also just before we conclude our last this, Tushar, anything you want to add on regarding the IB or any tips, any pro tips for our students or the viewers, those who are listening us? कुछ ऐसा बता दो यार कि IB में हमारी नौकरी लग जाए और हमें भी opportunity to work in this domain, right? So anything you want to add on? या डेफिनेटली. मतलब मैं आईबी रिलेटेड ही बोलूंगा, बट आई थिंक एक चीज जो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं वो ये है कि किसी भी फील्ड में इफ यू वांट टू मेक अ करियर, अगर उस फील्ड में ज्यादा लोग अप्रोच कर रहे हैं देन द नंबर ऑफ जॉब्स देयर आर. मतलब ये सबको आईबी करना है, राइट? और जॉब तो लिमिटेड ही है, राइट? तो जस्ट उस फील्ड की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, मतलब रिलेटिवली. फिर एम्प्लॉयर सैलरी भी देना थोड़ी सी कम करेंगे, क्योंकि इतनी डिमांड है, क्या जरूरत है सैलरी बढ़ाने की, राइट? तो जस्ट ट्राई टू थिंक डिफरेंटली. अभी मतलब एक और जो एक करियर अपॉर्चुनिटी है स्पेशली फॉर अस ऑल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इतने सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स फंडिंग रेज कर रहे हैं, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, एंड एवरीबडी वुड नो ऑफ वन ऑफ द स्टार्टअप दैट इज ऑपरेटिंग, राइट? सो अप्रोच दी स्टार्टअप्स. मतलब दिस इज अ वेरी गुड करियर अपॉर्चुनिटी जिसमें एक बहुत अच्छा रोल मिल सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को. थोड़ा ब्रॉड रोल मिल सकता है, मतलब उसमें उसको सेल्स भी करना है, ऑपरेशंस भी देखना है, फाइनेंशियल्स भी देखना है. तो ऐसे स्टार्टअप्स को अप्रोच करो, बेसिकली जो भी अर्ली स्टेज भी हो या फिर थोड़े से बड़े स्टार्टअप भी हो, इन स्टार्टअप्स को अप्रोच करो rather देन एवरीवन जस्ट फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर फील्ड. सो इफ यू थिंक मतलब हल्का सा भी आपको लगता है कि यार चलो यार ये आईबी मेरे लिए नहीं है, ऑल तो सब लोग जा रहे हैं, बट यार मेरा इंटरेस्ट तो दूसरी साइड है, मुझे अपने आप को और एक्सप्लोर करना है. सो मे बी ट्राई इनटू दीज फील्ड्स व्हिच आर अंडररेटेड वेयर लेस पीपल अप्लाई. तो वहां पे कंपटीशन भी कम रहता है और आपको अच्छी जॉब मिलने के भी चांसेस रहते हैं. आईबी है, भले मे बी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फर्म में चले जाओ या इक्विटी रिसर्च फर्म में चले जाओ. तो जिस तरफ कंपटीशन जा रहा है उस तरफ मत जाओ हर सब लोग, बट ट्राई टू फाइंड योर इंटरेस्ट एंड देन सी कि यार मतलब इतनी सारी और दूसरी भी अपॉर्चुनिटीज है, उधर भी जा सकते हैं. सो आई थिंक Right, दैट इज. right. Right. So in short, if I said try to find your Lela and then go into that direction, right? So don't या worry. Yeah, we are gonna be helping you with all those things, right? On 5th of September, we are having a special announcement. Let's see if we are able to announce it or not. But yes, we are trying our best to help you out with this thing.
So again, last question, yeah, because now as I when I said, so everyone is saying, please take my last question, right? So I think Palak is asking, could you suggest some tools used in IB forms? Tools, okay. So Right. IB firms basically database यूज करती है बहुत सारे प्राइवेट सर्कल वीसी सर्कल. सो दीज डेटाबेस व्हाट दे हैव इज कि मतलब अब आईवी फर्म में हमें क्या करना रहता है कि किसी भी क्लाइंट को जब भी हम पिच कर रहे हैं, जैसे जोमेटो को पिच कर रहे हैं, तो हमें बताना रहेगा कि हम आपके लिए कितना वैल्यूएशन ला सकते हैं, यानी आपका कितना वैल्यूएशन होगा इसके बाद. अभी आप 10,000 करोड़ वैल्यूड हो, आप 50,000 करोड़ हो गए, 60,000 करोड़ हो गए, तो वो हम कैसे फिगर आउट करेंगे? मतलब हमें कैसे पता कि 60,000 होना चाहिए या 70,000 होना चाहिए करोड़? तो हम फिगर आउट करने के लिए क्या करते हैं, हमारे पास टूल्स होते हैं जिसमें डेटा होता है कि यार पहले जोमेटो जैसी कंपनी यूएस में जो फंड रेजिंग हुई है जिसकी, मतलब फूड डिलीवरी कंपनीज यूएस में भी है राइट, जो फंड रेजिंग की है जिन्होंने, तो हम ढूंढते कि यार चलो उनका कितना वैल्यूएशन है, उनका वैल्यूएशन 70,000 करोड़ है और अभी उनकी सेल्स 7,000 करोड़ है. तो 70,000 करोड़ डिवाइड बाई 7,000 करोड़ 10 का मल्टीपल होता है. अब हम ये 10 का मल्टीपल हमें मिल गया. अब जोमेटो के पास आएंगे, जोमेटो बोल रहे हैं हमारी 2,000 करोड़ की सेल्स है, तो हम बोलेंगे आपका 2,000 करोड़ इंटू 10 20,000 करोड़ मल्टीपल होना चाहिए. तो ऐसे टूल्स यूज करते हैं बेसिकली जिससे हम आइडेंटिफाई कर सके कि बाकी वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बाकी वर्ल्ड में किस टाइप की कंपनीज है, किस टाइप की ट्रांजेक्शन हुई है. तो बहुत सारे टूल है, ब्लूमबर्ग, कैपिटल आईक्यू, फैक्टसेट, मर्जर मार्केट, वीसी सर्कल, वीसीसीएच, प्राइवेट सर्कल, एंड आई कैन नेम अ लॉट मोर, बट दीज आर द टूल्स और इसलिए यूज करते हैं. मैंने बता भी दिया यूज केस भी, तो दैट इज व्हाई यूज. Right. Great. So, can CA become an investment banker, entrepreneur? Yes, you can definitely become an investment banker, entrepreneur as well. Right. So great, yeah, great, Tushar. Thanks for joining us. The people, those whose doubts are not covered, so sorry. And if you have still have any doubts, you can post it on a comment section. I'll collate all the doubts and get it resolved from Tushar. And I'll try to ensure that all your doubts are clear. And we'll be organizing more such type of sessions in upcoming days. I think we have one more session tomorrow. So those who have not registered it, definitely you can register it, right? And also people from a Zoom, those who are connected with us, I'll request you to please stay connected so that we can have a group photo, right? Although if it would have been a live session, definitely I would ask for a selfie time, but yes, this is the thing which we can do. And really thankful for to Tushar from all of us, from entire CMONG team and entire community of students फॉर गेटिंग अस. मतलब आपने आए और समय दिया, यही बहुत बड़ी बात है यार. मतलब मैं काफी सारे, टू बी ऑनेस्ट, आज इन्वेस्टमेंट बैंकर को कॉल किया, काफी सारे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को कॉल किया, एंड टू नो दैट कि हाँ यार एक सेशन कर पाए. सो आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर एबल टू ऑर्गेनाइज दिस टाइप ऑफ सेशंस, राइट? सो thanks So yeah, thanks thank really. you for inviting me, and I think CA Monk is doing a very great job. मतलब ये because this is a very big gap. मतलब लोगों को पता नहीं होता एक्चुअली कैसे अप्रोच करना चाहिए. So spreading awareness about this thing और ये knowledge gap को close करना, it's very important. And I think kudos to CA Monk team who is spreading so much awareness among everyone and helping others to